already घेतलेलं आहे. Okay. Can we start? Yes, sir. Reshma madam, I hope the participants are already there. Yes, sir. Okay. Actually, great. Rajesh sir पण join होते, पण ते leave झाले आता. Okay, okay. I think there is some issue with my camera. हो. I'll just switch off my camera. So let us start. Rajesh Yes. sir is also here, the chairman of Pune branch. Welcome, sir. Good Thank evening. you, sir. Thank you. Good evening. On behalf of Pune branch of WRC of ICAI, I, CA Rushikesh Badwe, treasurer of the branch, welcome all of you, all the participants and today's distinguished faculty, CA Pritam Mahureji. So this GST, 5-day GST Gyan Satra series, very important topic will be covered today regarding precautions and disputes in the classification. As we all know, classification is to be looked at in a very meticulous manner, and a lot of disputes may arise in classification and various issues. So all those will be discussed today by none other than CA Pritam Mahure. I welcome CA Pritam Mahure, today's speaker, and I formally hand over the charge to CA Rajesh Agarwal, the chairman of Pune branch, for his welcome address. Rajesh sir, please. Thank you, Rishikesh. Thanks a lot. I welcome all the participants, and I also welcome today's faculty, CA Pritam Mahure sir. The topic of today's discussion we have shortlisted after discussion with Pritam sir is very, very important in today's scenario. Even though the notices in respect of classification are not served that much, but the volume of transaction and the liability with interest and penalty will be very huge. In my opinion, so maybe in many of the transactions, the liability will be more than 10 crores. Suppose in general, our rate of tax is 18%, and department said, no, it is not taxable at 18%, but it is taxable at 28% under 8708. As soon as it is taxable at 28%, additional 10% we have to deposit with interest. Yes. This will be a huge amount for a company having turnover of 100 crores per year or 50 crores per year. Considering all the disputes in market, we have scheduled this topic for today's discussion. And I request Pritam sir to please take a charge and continue with the session. Rishikesh, over to you. Thank you very much, Rajesh sir. I just proceed to introduce today's speaker to all the participants. In fact, Pritam sir needs no introduction, as he is very well known faculty. In the Pune branch, he has delivered various lectures in seminars as well as conferences of the Pune branch. But to formally introduce him, Pritam Mahure is an internationally recognized speaker, writer and advisor on the GST and VAT and how to be future proof. Pritam sir has authored more than 15 books which provide practical advice on optimizing the GST law. He is also an invited columnist for the leading media houses, including Business Line, Asian Age, Business Standard, Deccan Herald, Economic Times, the Times of Oman, etc. He has also addressed more than 200 conferences on GST, also on Gulf VAT in India, UAE, Oman, Bahrain, Kuwait, for the ICAI, CII, NSEIN, ASSOCHAM, NASSCOM, MCCI, DCCI, BCCI, etc. So, an internationally acclaimed faculty for today. I welcome CA Pritam Mahure sir and hand over the charge of the webinar to him. Thank you. Yes, thank you. Thanks.
Thanks, Rishikesh ji. Thanks, Rajesh ji. Thanks, Pune branch, for this wonderful opportunity given to us to share our views on this interesting topic. As Rajesh ji rightly highlighted, that this is going to be a topic which will be debated most in days to come. And I think this is the right time, I would say, to cover this topic. And that's the reason, friends, I hope the presentation is now can be seen. Yes, yes, yes. The Wonderful. presentation is So let's visible. begin. Yeah. Wonderful. See, when we talk about indirect taxes, I think the most debated topic is always right from excise, service tax, VAT, and now GST era, and across the globe also, if you look at it. The most debated topic has been two. One is classification and another is valuation. Classification for the simple reason because the time you change classification of any product, whether it's of goods or services, or for that matter, what is the right classification? Should it be taxed under 5% nil rate or should it be taxed under 18 or 28? Automatically, the liability of that particular taxpayer immediately gets impacted. And that's the reason this has been one of the most heavily debated topics. Because most of the classification related, I would say, positions, tax positions were adopted by the taxpayer in the earlier era, particularly in excise and VAT era. In those days, the tax rates were not that, I would say, there was not much difference in many HSNs and common rate was applicable. But once GST was introduced, there were multiple rates, be it 5%, be it 12%, be it 18 or 28. And when this transition happened, what we have witnessed that there were taxpayers who were manufacturing same products. So for example, somebody is manufacturing nuts and bolts, which would be used in car. And there are two manufacturers who are manufacturing those products. And both these manufacturers were classifying the product under different HSN without realizing. And in excise era, they were paying same rate of excise duty. But once GST was introduced, both of them never realized that the tax rate which they were paying, at which they were paying the product, means the GST, there was a difference in that. And that's where I would say in days to come, because all these tax positions were adopted by the taxpayer in the very first year of GST. And right now, as the more and more audits are being taken up by the authorities, and more, I would say, investigations are being carried out, automatically it has been seen that all these classification disputes have started to appear in front of the tax professionals. Friends, first let us understand what is classification. Most of you may know, but let me start with very basics. Classification, as a human being also we know what is classification, because we divide ourselves as a human being into male, female and neutral. So exactly like that, even when it comes to GST, we divide something into goods, services or both. Now, when you talk about this classification in GST, we need to understand, and as rightly pointed out by Rajesh also, that classification has implications on the tax rate of a particular product. But please note, additionally, apart from tax rate, even time of supply might get impacted, because if you say your product is basically goods, and if the GST authority say no, it is services, then whatever advance you have received, that will become taxable. In certain cases, if you say whatever you supply you are making, if it is part of a service which is exempted, and if you say it is basically a service, and automatically the exemption which is provided under service should be available, then automatically that activity will get exempted. However, if the authorities say no, exemption is given to a service and what you are providing is goods, then automatically the tax liability will come. So even levy will get impacted. Place of supply. We have to understand that there are different provisions for provision. I would say different provision for place of supply of goods as well as place of supply of services. And accordingly, the time you determine whether my transaction, whether my activities, whether they classify as goods or whether they classify as services, automatically even the place of supply provisions get impacted. Then input tax credit. All of you are aware that in certain cases, particularly in case of works contract services, you are not entitled to claim input tax credit. So when you do construction, and in that particular scenario, if you are procuring works contract services and you are a manufacturer, you may not be entitled to claim credit. But what if you procure goods separately and services separately, then whether the credit would be available or not? That could be one of the debatable question. And even that would, I would say, even your ITC would get impacted because of that. So even classification has impact even on ITC. Friends, as all of you are aware that in certain cases,
there are scenarios wherein instead of the supplier, recipient is supposed to pay tax. So whether reverse charge is applicable on your activity or not, that will also get determined based on what kind of classification you are determining. Even TDS, all of you know that in case of TDS, the provision that is covered under section 51 gets applicable, but there also you need to understand whether your activity is basically goods or services. So friends, as we discussed, when we talk about classification, you will be in a position to understand that different provisions under the GST law gets impacted. Unless and until you determine whether your activity is goods or services, you cannot move forward. The first starting point under GST is always classification. First, you need to determine what am I supplying. Am I supplying goods? Am I supplying services? Am I supplying both? And then you have to go back to the notifications and then apply your GST rates appropriately. But when we have debated right now, or when we are discussing about all the classification related points, all of you will say, but sir, then we had talked about one nation, one tax also when GST was introduced. Yes, all of us were on that boat when the slogan of GST was one nation, one tax. But eventually, I think today, most of you will agree that it is one nation, many states, and one tax, many rates. That's where we are. And we have to face now all the scrutinies and audit and assessment and handle all these cases appropriately to ensure that there is no additional liability on our clients because of classification. Now, friends, as we discussed, that classification has a background. As we mentioned, even as humans, we get ourselves classified into male, female, and neutral. So similarly, even a transaction gets classified as goods or services or both. But before we venture into that area, we need to understand from where this classification originated. So for that, we have to go back to Constitution. All of you are aware about Article 265 of Constitution of India, which says, and in a beautifully, I would say, which beautifully says in just 12 words, no tax shall be levied or collected except by authority of law. Just 12 words. But it precisely says that unless and until there is an authority of law, unless and until there is a law, you cannot collect a tax. And in that regard, all of you know that GST was introduced by way of Article 246A, which gives authority of law, along with obviously Article 269A, read with the GST Act. So this authority of law originates from Article 246A and 269A. When we read Article 246A, it specifically says, notwithstanding anything contained under Article 246 and 254, Parliament and subject to clause 2, the legislature of every state have power to make laws with respect to goods and services tax. So for the very first time in Article 246A, there is a mention of the term goods and services tax. Now, naturally, it will come to our mind, what is the meaning of the term goods and services tax, which is being imposed by union and by the state government. And this term, that is goods and services tax, has been defined under the Constitution itself, under Article 366(12)(a). Now, this term, which was introduced through Constitutional Amendment Act in 2016, through the 101st Constitutional Amendment Act, it specifically says goods and services tax means. So we can understand that it's an exhaustive definition. They are starting with the word means, and then they say means any tax on supply. Please note, they are using the word supply, but in Constitution, there is no definition of the term supply. However, then the definition proceeds and it reads as supply of goods or services or both. This is the very first time in the Constitution there is a specific reference to the word goods or services or both. And from this definition, I would say Article 366(12)(a), this classification originates. So the origin or the Gangotri of classification is basically Article 366(12)(a), wherein it is specified that taxes payable on supply of goods or services or both. That means we need to classify a transaction into either a goods transaction or a service transaction or a both transaction. So unless and until you classify a transaction as goods or services or both, you cannot levy a tax on any particular transaction, I would say. And this is a starting point, friends. So Article 366(12)(a) is the Gangotri, is the very first provision which provides for classification.
In the same article, the terminology is also except taxes on supply of alcoholic liquor for human consumption. That means if you are supplying alcoholic liquor for human consumption, it would not be taxed under GST Act. And the reason all of you know, because typically liquor has been a state subject matter. So friends, now let's proceed. So let me ask you a very interesting question. When we are saying under the GST law, under Article 366(12)(a) under the Constitution, when it is mentioned that it is a tax on supply of goods or services or both, except taxes on supply of alcoholic liquor for human consumption. So let me ask you an interesting question. What if there is a person who is basically a bar owner, and this bar owner is charging certain amount. He is charging certain amount as a service charge to the person who is enjoying liquor in his bar. So I have a question for you. If the liquor is costing 1,000 rupees and that bar owner is charging 10% as service charge, so the question is whether this 10% would be, that is 100 rupees on 1,000, 100 rupees, whether it would be subjected to GST or not. You can give your answer in the chat box. So Ravindra ji is saying yes, it is liable. Any other answer? Shailesh ji is saying yes, it is liable. Sunil ji is saying it is a service. Prajakta is saying it is a service or liable. Sri Gopal Kabra is saying yes. I think most of you are going with the answer. Sunil ji is saying yes. Almost all of you. Any other participants? Because there are 117 participants. I want all of you to answer. And as I can share with you, there are no wrong answers in GST, because even if there is a wrong answer, I can tell you there is a advanced ruling. There could be advanced ruling who is backing your answer. So you don't have to worry that it could be a wrong answer. So Prajakta is saying yes, Sharmishta is saying yes, Sri Gopal is saying yes. So I think all of you are saying yes, but Satish is saying yes. But friends, so Narendra ji is saying no, sale of alcohol is taxable. So Narendra ji is saying no. Nidhi, somebody has raised hand. I will request all of you to first give answer in the chat box only. Friends, we need to understand. See, look at the terminology. It says means a tax on supply of goods or services or both, except tax on supply of alcoholic liquor for human consumption. So the very first point in our mind has to be what that bar owner is supplying. Is he supplying goods? Is he supplying services? Or whether he is supplying both? And I would say when he is supplying both, we need to understand what is a principal supply. So if you really ask me as a professional, I would say in this case, particularly in case of service charges for liquor, the taxability may not arise because there are no two supplies. It is one supply. We cannot say there are two supplies, that is supply of liquor and service charges. It is rather one supply only, that is supply of liquor. And if at all there is service charge, then that service charge is basically incidental in this case. And if that is the case, if that is the scenario, then practically GST liability may not trigger on this particular supply, because on the entire 1100, tax may not be applicable because this is one single supply. It is not two supplies. And that's where the basic principle we need to apply as to when we talk about classification, what is the nature of the supply? Because once you determine what is the exact nature of supply, you would be in a position to come to terms with a final answer about the taxability of that particular supply. And that's the reason, friends, we need to understand the classification and all related aspects which we'll be discussing in the next slides to come. I hope all of you agree with the answer which I have given. If there is any other view which you would like to share, then please feel free to. Any other view?
Any one of you who feels that it is taxable? If not, then let's proceed. Perfect. So friends, once we talk about the fact that Constitution specifically refers to three terms. Supply. Achha, there is some question. Sir, it is not a survey. Running a bar is different than supply of alcohol. Sunil ji, in this example, which we discussed, what we said that in a bar, there is a person who is enjoying liquor, and the person who is supplying liquor, he is giving you a bill of 1100 rupees. 1000 rupees for liquor, 100 rupees as service charge. So this service charge will not be applicable if you don't order liquor. So service charge is not having an independent existence. It is attached to the main supply. And if the main supply is not attracting any tax, then even incidental supply will not be subject to tax. And there are a couple of judicial precedents also for that, and which we'll be discussing in the next couple of slides. So let's proceed now. So perfect, very nice question, Sunil ji. तो और भी कुछ रहेगा तो please feel free to ask the question. Perfect. चलो आगे बढ़ते हैं. So we said that for the very first time, the reference to the term goods or services or both appears in the Constitution of India. Subsequently, when you move to GST Act, there is a specific reference in the GST Act also, and that originates, or the first mention of that is in section 9, that is the charging section, wherein it is specifically mentioned that subject to subclause 2, there shall be levied a tax referred as GST on supply of goods or services or both. So here also there is a reference of these three terms, goods or service or both. Subsequently, when you refer to section 7 also, exactly same terminology you can understand or you can refer to. It says supply of goods or service or both. So be it Constitution, that is Article 366(12)(a), be it section 9, or be it section 7, which defines supply. All at these three places, there is a reference to the term goods or service or both. But we need to understand, while goods, services or both, these three terms are defined under the GST law as well as in the Constitution. Please note, the term both is not at all defined. So while there is a reference to the term goods, service or both, the term both is not defined, but the term goods and services, these two terms are defined. How these two terms are defined? Let's understand. First, the term goods is defined in the Constitution under Article 366(12). Please note, this definition is there in the Constitution right from day one. It is there in the Constitution of India right from article, like say, way back, like say 1982. Right from those days, this definition is there. Now, when you talk about the definition of goods, in the Constitution, it has been given in an inclusive manner. And I will contradict this definition in the GST Act also, because in the GST Act, it is not in an exactly similar manner as it appears in the Constitution. In the Constitution, it says goods includes all material commodities and articles. So first, it's an inclusive definition. When it includes something, it identifies three specific, I would say, types of transaction. Transaction in materials, transaction in commodities, and transaction in articles. So it is trying to identify something physical in nature, some movable property. And then the definition in Constitution says goods includes these physical things, that is material, commodities, and article. That's it. So it refers to only three things: material, commodities, and article. But please note, as I mentioned, the definition is inclusive in nature. And that's the reason, because it is inclusive in nature, it is likely that much more things than what is specified in the definition, which is specified in the Constitution, can be there. And how it can appear? Because the Supreme Court recently, in case of Skill Lotto, in 2022, specifically mentioned that the definition of goods in Constitution is inclusive in nature, and it does not specifically exclude actionable claim. So the question before the Supreme Court in this particular case was in the context of actionable claim. And then there was a debate whether actionable claims are included or not included in the definition of goods.
Now you can refer to the constitutional definition. It only includes three things, I would say: material, commodities, and article. It never ever talks about any actionable claim whatsoever. But the Supreme Court says at the same time it does not exclude actionable claim also, and because of that, in the definition of goods, even actionable claims would get included. And when you refer the definition of goods under section 2 subclass 52 in the GST Act, you can understand it is specifically mentioned goods means every kind of movable property other than money and securities, but includes actionable claim. So when you come to GST Act, actionable claims are specifically included, but when it comes to the Constitution, actionable claims are not included. But the Supreme Court has said, because the definition of goods in Constitution of India is inclusive in nature, automatically they are saying the definition will include even actionable claims. And friends, whenever there is any debate whether something is goods or not, as I mentioned, you may have to go back to constitutional definition also, because the starting point of definition of goods may not be GST Act, but it may become Constitution eventually. And please note that the definition of goods in Constitution is inclusive in nature. Now, let us understand how the term goods is defined under the GST law. When you go to section 2 subclass 52, which defines what is meant by goods, the definition starts with goods means. When you refer to Constitution, it talks about goods includes. But when you talk about the definition of goods in GST Act, it starts with goods means. And then it says every kind of movable property. In the Constitution, they are talking about three movable properties, I would say: material, commodities, and articles. But when you come to GST law, it says every kind of movable property. So whatever can be its kind. It might be commodities, article, material, it can be anything, but it has to be a movable property. If it is a movable property, then it is goods. So equally, it means if it is immovable property, it is not goods. That is what we can say. If it is movable in nature, it is goods, but if it is not movable in nature, then it is not goods also. Now, you understood the definition of goods. Now, let us understand what is meant by the term service. The definition of the term service is there in the Constitution of India also under Article 366(26)(a). And the term service is defined to mean anything other than goods. And in most of the cases, this has become one of the mostly, I would say, heavily debated topic. And the reason is the definition of the term service. It starts with means, but then it says anything other than goods. So naturally, whether the indication is that everything other than goods is basically everything other than goods is a service, then is that what the legislature are trying to indicate? Friends, I won't agree with that kind of a view, because we need to understand there are two definitions. One is of goods, another is of services. Both these terms, goods and services, both these terms have been defined first in the Constitution of India and then subsequently under the GST Act. When we come down to GST Act, the definition, whether it is goods definition or service definition, it is not inclusive in nature, I would say. It starts with very specifically means. That means it's an exhaustive definition. So first, goods means every kind of movable property, and then it says services means anything other than goods. So in our view, services, the term service is not, I would say, completely exhaustive in nature. There are certain limitations to the term service. Although it is defined in a wider manner, it might include many things, but it will not include everything. And I will give you the reason also for that. First, services means, they are not saying services includes. So means exhaustive definition. Second, anything other than goods. They are not saying everything other than goods. Third important thing, they are saying anything other than goods. That means if it is not goods, it may be a service. But in our view, it does not mean everything that is not goods is a service. For example, immobile property. When you talk about immobile property, you'll be in a position to understand when you discuss about immobile property that this term immobile property
is also there in the Constitution or General Clauses Act as well. There are multiple times there are reference to the term immovable property even under the General Clauses Act, and the term is also defined. And even under the earlier law, be it VAT regime, excise regime, service tax regime, everybody understood that if something is immovable in nature, then it may not be subject to excise duty or VAT, or for that matter even service tax. So everybody understood it that way. So when it comes to a conclusion, when you will come to a conclusion that something is immovable property in nature, in our view, a view can be adopted that it is not service. Because when the legislature in their wisdom, when they said means anything other than goods, they had only one thing in mind. As far as we are concerned, in our view, they had only one thing in mind. Because they had seen earlier litigation under the VAT regime, under the service tax regime, wherein whenever the VAT authorities or sales tax authorities, whenever they wanted to tax something as goods, for example, they wanted to tax restaurants, but then in Supreme Court, the taxpayer said, when in a restaurant food gets served, it is not basically a goods transaction, it becomes a service. Similarly, in case of works contract, you would be knowing about that famous judgment of Gannon Dunkerley. When the Supreme Court wanted to tax, when the taxpayer, sales tax authorities wanted to tax the transaction of works contract, the taxpayer took a view in the Supreme Court that this kind of transaction, that is works contract transaction, are not sale of goods transactions, and accordingly you cannot levy a tax on works contract services. Because they said that this transaction of works contract is basically an indivisible transaction. In the part of, as a part of provision of works contract service, I am supplying goods. And they said, because it is a service transaction, you cannot levy a tax on this particular works contract activities in the name of sales tax or in the name of goods. So the legislature, when they were trying to define the term services, they had this litigation in their mind. And accordingly, they said that when a taxpayer will say this transaction is not goods transaction, then all those kind of transactions, be it works contract, be it transfer of right to use, be it any other transaction, such as restaurant transaction, all this transaction will then qualify as a service transaction. And the legislature will get a right to tax those transactions under the ambit of services, under the basket of services, under classification of services. So in our view, the term service, although defined in a wider manner, or at least that is where the indication is, but still in our view, there would be a limitation to the term service. If you say the term service is extremely wide in nature, it includes everything, even an immobile property transaction, then I think we are starting on a very wrong footing. Very wrong footing, because then we are starting with answer only. We are not trying to debate also to that extent. So in our view, a view can be adopted that service definition, although it is, one can say it is wide in nature, but I won't agree with the view that it is extremely wide in nature to even include an immobile property transaction. Now friends, we understood what is goods and what is a service transaction. And please note, right now we are just starting with a couple of basic definitions. As we proceed with a couple of examples, case studies, you will be in a much better position to understand how to read these definitions. Now you understood the term goods and you understood the term services. Now what about both? Whether the term both is defined? So you can give your answer in the chat box. I will request all of you to give the answer whether the term both is defined in the Constitution of India, or for that matter in the GST Act or any other place. Please feel free to give your answers. So Sunil ji is saying not anywhere, Rajmani ji is saying no. Any other view? Rohidas ji is saying no. Binita ji is saying no. Hemant ji is saying composite. But what about both?
composite supply, Hemanji, you are right. The term composite supply is defined under section 2 subclause 34, and even mixed supply is defined. But what about both? So Sunilji is saying we have to refer to dictionary meaning. So Sunilji, in your view, and I will request all of you also to give an answer, what would be the meaning of the term both? Samirji, I will request you also to give your answer. What is the meaning of the term both? Both मध्ये किती गोष्टी include होतात? What is general meaning of the term both? So Sunilji is saying two. Anyone else? Both means first and second. So you are saying the term both will include only two things, not three things together then. And because the term both succeeds the term goods and services, one can say the legislature is trying to say goods and services when you are clubbing these two things. So the GST law at max can tax goods, service, and goods plus service. That is the meaning of the term both. Now you will say why we are debating, because this kind of debate we never had. Whether it is really important to understand the term both, I will tell you, I will give you a case studies also after some time, and there you will be in a position to understand why it is important to understand even the term both. So almost all of you are right that both will include first two things, that is goods and services, or at max two things together is basically both. So that means two goods supplied together can be both, two services supplied can be both, goods plus services can be both. Am I clear? Perfect. Let us now understand basically how should we classify a transaction? What should be the sequence? Whether under GST law or constitution, whether there is any sequence which has been given, what kind of sequence we should follow when we are trying to classify a transaction? Should I start with the definition of goods? Should I start with the definition of services? Should I start with the definition of both or composite supply? How should I start? Any answer? Any one of you? If a transaction is given to you, if a transaction is appearing in front of you, what would be the sequence? Should you start with goods, service? Or should you say first, let me see whether this transaction is service first? Suvarnaji is saying as per situation. Friends, in our view, whenever any transaction appears in front of you, whether something is goods or services or both, you need to start with the definition of goods first. Because the definition of the term service is, service means anything other than goods. यानी सर्विस का ट्रांजैक्शन जो आप क्लासिफाई करना चाहते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन जो भी आप ट्रांजैक्शन देख रहे हो, that should never classify as service. बराबर है? Because that should never classify as goods, because service means anything other than goods. तो पहले आपको कंक्लूजन लाना पड़ेगा. You need to reach to a conclusion that your transaction is not a goods transaction. तभी आप सर्विस करके वो ट्रांजैक्शन करके क्वालिफाई करेगा. तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैं कोई एडवाइजरी दे रहा हूं, भले मैंने ओपिनियन राइटिंग में पेजेस पे दे दिया, you have to come to a conclusion that this transaction that I am giving an opinion in writing on printed pages to the client is not a goods transaction. अगर वो गुड्स वाला ट्रांजैक्शन नहीं है तो ही वो सर्विस का ट्रांजैक्शन हो सकता है. बिकॉज अगर वो गुड्स वाला ट्रांजैक्शन रहेगा तो वो सर्विस बन ही नहीं सकता. सो द स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी वेदर द ट्रांजैक्शन इज गुड्स और नॉट. एंड ऑब्वियसली सर्विस, जैसा हम बात कर रेस्टोरेंट इज बोथ, बट थोड़ा आगे हम आएंगे रेस्टोरेंट की केस में. सो इन आवर व्यू द स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. एंड अगर कोई ट्रांजैक्शन में, अगर कोई सिचुएशन में, इन सर्टन सिचुएशन अगर वो ट्रांजैक्शन गुड्स भी नहीं, सर्विस भी नहीं और बोथ भी नहीं, तो इन आवर व्यू यू कैन नॉट लेवी अ टैक्स आल्सो ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. आप जीएसटी लगा भी नहीं पाएंगे. तो
तो आपके सामने अभी स्लाइड पे एक आपको बिल्डिंग दिख रही है, बराबर, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे जीएसटी लगेगा क्या? ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी है वहां पर रेसिडेंशियल फ्लैट बन रहे हैं। कौन से फ्लैट? रेसिडेंशियल फ्लैट। तो हमारा क्वेश्चन है आप सबके लिए, रेसिडेंशियल फ्लैट जब कोई बेच रहा है बिल्डर, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं? यस और नो? रविंद्र जी से यस, सुवर्णा जी से यस, सुनील जी सिंह ऑब्वियसली, बट इट इज नॉट ऑब्वियस। सुनील जी, मैं आपको बताऊंगा क्यों ऑब्वियस नहीं है वो। नीलम जी सिंह, सुवर्णा, बिफोर पोजीशन, बिफोर पोजीशन। आप में से हर कोई, किरण, पंकज जी, प्रकाश जी, हेमंत जी सिंह नो, ऑल अदर्स आर सेइंग यस। तो हेमंत जी, एनी रीजन अंडर कंस्ट्रक्शन के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगेगा? समीर जी सिंह यस, श्रीकांत जी सिंह यस, हेमंत जी सिंह इमूवेबल नहीं है, बट जैसे मैंने मूवेबल नहीं है, बट जैसे मैंने कहा हेमंत जी, बिफोर ओसी, बिफोर कंप्लीशन, बिफोर कंप्लीशन आप बेच रहे हो, बिफोर ओसी है। तो फैक्चुअली लेट मी क्लैरिफाई, इट इज बिफोर ओसी, बिफोर कंप्लीशन। तो बताइए, yes, I will request all other participants also to give their answer. 150 participants है अभी, and as I mentioned, there are no wrong answers. Please try to test yourself because these are the kind of sessions जहां पर आप खुद का आंसर टेस्ट करते हो, फिर ही आपको पता चलेगा कि आपके आंसर्स बराबर है क्या नहीं। इन फ्यूचर आप बराबर डिसीजन ले पाएंगे, बिकॉज अगर आपका आंसर सही रहा तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस, अगर आपका गलत रहा तो आपको रीजन मिलेगा क्यों मेरा आंसर क्यों गलत हुआ, मैंने क्या मिस कर दिया। तो जब आप क्लाइंट को एडवाइस दे रहे हो, जब आप अथॉरिटी से बात कर रहे हो, तो आप प्रॉपरली सोच पाओगे। तो लगभग सभी लोगों ने आंसर दिया है कि लगभग मैक्सिमम 80-90% पीपल आर सेइंग जीएसटी इज लेविएबल ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट। बट फ्रेंड्स, अब तक हमने एक इंपॉर्टेंट, एक ही मैं कहूंगा एक इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन किया। वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या था? कोई भी ट्रांजैक्शन जब हमने देखा कि उसको आपको गुड्स में क्लासिफाई करना है, सर्विस में क्लासिफाई करना है, या बोथ में करना है, तो लेट मी आस्क यू दिस सिंपल क्वेश्चन नाउ। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट जब आप खरीद रहे हो, वो गुड्स आप बाय कर रहे हो, सर्विस बाय कर रहे हो, क्या बोथ बाय कर रहे हो? एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर। 150 लोग, 150 लोग आंसर करें प्लीज। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हेमंत जी, होप है या नोप है? रविंद्र जी सिंह बोथ, अनिंदा इज सिंह बोथ, शैलेश इज सिंह बोथ, रीता, नीलम, वैभव इज सेइंग मोर देन बोथ। इंटरेस्टिंग पॉइंट वैभव जी, इंटरेस्टिंग पॉइंट, यू आर सेइंग मोर देन बोथ। सुरेंद्र, मोहसिन जी, रेखा जी, all of you are saying both. श्रीकांत जी saying both, सुवर्णा जी saying both, रोहिता जी, मानसी जी, प्रथमेश जी, all of you are saying both. रोहिता जी ने, and I would say रोहिता जी as well as वैभव जी ने इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाला है। they are saying something more than both. and I can also agree with that view, because जब आप फ्लैट खरीदते हो बिल्डर के पास से, आपको दो नहीं, आपको तीन चीजें मिलती है। डीम्ड के बाद बारे में हम पंकज जी अलग बात करेंगे, डीम्ड के बारे में हम अलग बात करेंगे, बट पहले समझ लेते हैं कि जब आप कोई भी फ्लैट खरीदते हो तो आपको दो नहीं चीजें मिलती है, आपको तीन चीजें मिलती है। कोई बता सकता है कि आपको कौन सी तीन चीजें मिलती है जब आप फ्लैट खरीदते हो? तीन चीजें कौन सी मिलती है? एनी गेसेस? आपको सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स मिलता है, गुड्स, आपको आर्किटेक्ट वगैरह, लेबर वगैरह का सर्विस मिलता है, एंड अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड मिलता है, राइट इन लैंड, राइटली पॉइंटेड आउट बाय रीता जी। यू गेट थ्री थिंग्स टुगेदर, गुड्स, सर्विस एंड अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड। ये तीन चीजें आपको साथ में मिलती है। और जैसे हमने कहा कि जीएसटी लॉ में सिर्फ और सिर्फ आप वही ट्रांजैक्शन टैक्स कर सकते हो जो प्योर गुड्स का है, जो प्योर सर्विस का है,
या एट मैक्स बोथ वाला ट्रांजैक्शन है, जहां पर 3 चीजें आप दे रहे हो उस चीज को टैक्स करने का ना कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब हमने डेफिनेशन देखा सब जीएसटी का आर्टिकल 366(12)A में, वहां पर भी 3 चीजों के बारे में बोली गई है बात, गुड्स सर्विस एंड बोथ। बोथ के बियॉन्ड जब कोई ट्रांजैक्शन जाता है तो उसको टैक्स करने का कोई भी प्रोविजन ना कॉन्स्टिट्यूशन में है ना ही जीएसटी लॉ में है। तो ये राइट नाउ एक बहुत ही आई वुड से ओपन एंडेड राइट नाउ पॉइंट है कि बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन जब भी कोई फ्लैट बेच रहा है तो वो गुड्स नहीं, सर्विस नहीं और बोथ नहीं, तो उसके ऊपर बेसिकली कोई भी टैक्स पेबल नहीं होगा। ये व्यू लिया जा सकता है। आप कहेंगे फिर सर अभी तक किसी ने क्यों नहीं लिया? बिकॉज प्लीज नोट करिएगा, whenever we talk about indirect taxes and we need to be very true to our own self also, as a consultant कोई भी आपके पास डेवलपर आएगा, मेरे पास भी आएगा, तो भी मैं कहूंगा कि सर इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टमर से लेना है, गवर्नमेंट को देना है, तो लिटिगेशन क्यों करना है हमको? आप कस्टमर से लो, गवर्नमेंट को दे दो। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई भी लिटिगेशन करना नहीं चाहता। इसके लिए आप देखेंगे हर कोई टैक्स पे करने के लिए मोर देन हैप्पी राइट नाउ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पे। लेकिन अगर कोई सही में डिबेट करना चाहता है तो मैं कह रहा हूं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है जहां पर आप बोल सकते हो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। नाउ समबडी इज सेइंग कि लैंड का कॉस्ट का डिडक्शन मिलता है, बट फ्रेंड्स पहली बात है लेवी की। लेवी अगर एप्लीकेबल होगा तो डिडक्शन की बात करेंगे ना हम। लेवी तो एप्लीकेबल ही नहीं, बिकॉज बोथ के बियॉन्ड लेवी जा ही नहीं सकता। उसके लिए पहले लेवी क्रिएट करना पड़ेगा बोथ के बियॉन्ड। बोथ के बियॉन्ड लेवी ही नहीं जा सकता। अगर कोई ट्रांजैक्शन बोथ के बियॉन्ड है, यानी 3 चीजें आप बेच रहे हो, तो वहां पर टैक्स ही नहीं लेविएबल है। आप कहेंगे 1/3 डिडक्शन है लैंड का, बट फ्रेंड्स बॉम्बे में अगर आप फ्लैट लेंगे जहां पर फ्लैट का कॉस्ट बॉम्बे में 50-100 करोड़ आता है, वहां 1/3 कैसे आप जस्टिफाई कर पाओगे? वहां पर मेन प्राइस लैंड का है। सी फेसिंग अगर फ्लैट लेंगे आप तो वहां मेन जो प्राइस है वो लैंड का है। तो बेसिकली ये आर्गुमेंट आप ले सकते हो, ऑब्वियसली कोई लेगा नहीं। आई ऑल्सो नो मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स आर ऑल्सो, मोस्ट क्या हर कोई हमारा क्लाइंट पे कर रहा है जीएसटी, आपका भी पे करता रहेगा। लेकिन इन डेज टू कम जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाने चालू होंगे तब ये जरूर और जरूर ये आर्गुमेंट लिया जाएगा। एटलीस्ट हमारे क्लाइंट की केस में तो हम लेंगे, और आप जो भी पार्टिसिपेंट है उनको भी आर्गुमेंट अभी पता है, तो वो सब भी क्लाइंट की केस में आप ले सकते हो कि भैया जीएसटी लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम कैपेबिलिटी गवर्नमेंट का है टू टैक्स अ ट्रांजैक्शन व्हिच क्वालिफाइज एज बोथ ट्रांजैक्शन। जहां पर बोथ के बियॉन्ड कोई चीज जाएगी, गुड सर्विसेज एंड अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड, वहां तो टैक्सेबिलिटी ही नहीं आएगी। तो ये आप आर्गुमेंट ले सकते हो, बराबर है। और इसीलिए हमको हर डेफिनेशन को, जीएसटी लॉ के हर वर्ड को रीड करना, समझना बहुत जरूरी है। तभी आप आपके केसेस फाइट कर पाओगे। अदरवाइज तो केस चालू होके ही आप हार जाओगे, जैसा चालू हुआ। क्यों? बिकॉज आप अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन नहीं ला रहे हो, आप अप्रोप्रिएट आर्गुमेंट नहीं ला पा रहे हो, आप अप्रोप्रिएट कंटेंशन नहीं पुट कर पा रहे हो। आप कहेंगे सर वैसे भी ऑफिसर के सामने कुछ भी बोला वो तो अगेंस्ट ऑर्डर पास करने वाले हैं। आई एग्री, बट अगर आपने आपके सब आर्गुमेंट अप्रोप्रिएटली पुट अक्रॉस किए बिफोर द अथॉरिटीज, उन्होंने भले इग्नोर किए, इन डेज टू कम देयर वुड बी ट्रिब्यूनल्स व्हिच वुड बी सेट अप। हाई कोर्ट में मैटर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, वहां तो आपके आर्गुमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे ना। तो इसके लिए आपने सबने बहुत ध्यान से लॉ पढ़ना जरूरी है, एंड हर वर्ड को बहुत केयरफुली पढ़ना जरूरी है। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री। और मुझे लगता है कि अब तक जहां पर भी ये टर्म्स आपने देखे रहेंगे, गुड सर्विस बोथ वर्ड को तो कोई देखता भी नहीं था, बिकॉज बोथ कोई इंटरेस्टिंग ही नहीं है वर्ड, बिकॉज उसका डेफिनेशन ही नहीं दिया है। बट हमारे हिसाब से ये बोथ जो वर्ड है ना, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला है इन डेज टू कम, जहां पर बोथ वर्ड पे डिबेट भी होगा, एंड उसकी वजह से कितने सारे केसेस हारे या जीते जाएंगे, बराबर है। तो चलो, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड the meaning of the term both is going to play a crucial role. Additionally, आप में से किसी ने कहा कि डीम्ड सर्विस है, बराबर, जैसा पंकज जी रेफर कर रहे हैं डीम्ड सर्विस है करके। पंकज जी प्लीज नोट करिएगा, जो डीम्ड सर्विस का रेफरेंस आता है वो आता है सेक्शन
7(1) कैपिटल ए, बराबर है। सेक्शन 7(1) कैपिटल ए में स्पेसिफिकली मेंशन किया है, इफ अ ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ सप्लाई, अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई करके कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, यानी सप्लाई करके क्वालिफाई हो रहा है, तो वो क्वालिफाई होने के बाद वो गुड्स का है ट्रांजैक्शन क्या सर्विस का, इसके लिए आपको शेड्यूल 2 में जाना है। बट जैसे हमने कहा कि ये ट्रांजैक्शन जो इमोबल प्रॉपर्टी का है, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट का है, वो गुड्स और सर्विस और बोथ करके क्वालिफाई ही नहीं हो रहा है, वो सप्लाई करके क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आपको ऑब्वियसली शेड्यूल 2 को तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके पहले ही लेवी फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली टैक्स ही नहीं आएगा। आई होप पंकज जी आपको आंसर मिल गया है। एज फार एज ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स आर कंसर्न, जिन्होंने आंसर दिया था, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेंशन कि आपको ये लॉजिक रैशनल एग्री है, नहीं है, कोई डिस्प्यूट है, आपको लगता है कोई पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज प्रोवाइड योर आंसर। आपको क्या लग रहा है? डू यू एग्री विद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म बोथ? क्या लग रहा है आपको? व्हाट यू थिंक? डू यू एग्री विद द व्यू कि बोथ का टर्म बहुत डिबेटेबल होने वाला है? सुनील जी यस, परफेक्ट। अच्छा, अभी तक हमने लगभग 1 आवर स्पेंड किया है टुगेदर, 50-55 मिनट हो चुके हैं हम जब डेफिनेशन से स्टार्ट किए थे। तो अब तक जो भी हमने डिस्कशन किया वो सब अभी अब तक आपको समझ में आ रहा है? हम राइट अंडरस्टैंडिंग या राइट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं जो अपना टॉपिक है उसके रिगार्डिंग? आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज शेयर योर फीडबैक। कोई स्पेसिफिकली पॉइंट है आपको लग रहा है कि डिबेट करना है, डिस्कस करना है, कोई पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, टू फास्ट हम जा रहे हैं, टू स्लो जा रहे हैं, लैंग्वेज में अंग्रेजी हिंदी चाहिए आपको, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज प्रोवाइड दैट फीडबैक। बिकॉज वर्चुअल पे क्या हो जाता है, एज ए स्पीकर वी डोंट अंडरस्टैंड नो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। एटलीस्ट जब इन पर्सन होता है तो एटलीस्ट फ्रॉम योर फेसेस वी कैन जज कि डायरेक्शन बराबर है क्या नहीं। वर्चुअली डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, perfect. I think all of you are giving assurance that yes, the things are moving in the right direction. Perfect. Thank you all. Thanks. Wonderful. चलो, तो अभी हम जाते हैं पहला अपना केस स्टडी की तरफ, बराबर है। अभी तक हमने डेफिनेशन देखा गुड्स का, सर्विस का वगैरह। अभी हम बात करते हैं कि भैया गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, लाइव केस स्टडी के साथ, बराबर है। तो पहले तो ये समझ गए आप सभी अभी कि गुड्स अलग होते हैं जीएसटी लॉ में, सर्विस अलग होते हैं, बराबर है। तो चलो, आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। केस स्टडी क्या है? आइसक्रीम का। आप सबने नेचुरल आइसक्रीम पार्लर या जो भी आइसक्रीम पार्लर आप जाते हो, वहां पर आपने आइसक्रीम ऑर्डर किया रहेगा, आपको स्कूप में से निकाल के देते हैं लोग आइसक्रीम। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो आइसक्रीम आप जब ऑर्डर करते हो, नेचुरल आइसक्रीम पार्लर में गए और आपने आपका फेवरेट फ्लेवर, कौन सा है आपका फेवरेट फ्लेवर? कोकोनट, टेंडर कोकोनट, करेक्ट, मैंगो, जो भी आपका फेवरेट फ्लेवर है वो आपने ऑर्डर किया। अभी आपको नेचुरल आइसक्रीम पार्लर वाला जो शॉप है उसने आपको क्या सप्लाई किया? इज ही सप्लाइंग यू गुड्स और इज ही सप्लाइंग यू सर्विसेज? बताइए। रविंद्र जी सेइंग गुड्स, सौरभ जी सेइंग गुड्स, नीलम जी सिंह बोथ, सुवर्णा जी सिंह गुड्स, किरण बोथ। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अनिंदा पाली सिंह बोथ, प्रकाश जी सिंह बोथ। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जीएसटी लॉ में जो भी नोटिफिकेशंस है, जो भी टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन है, जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन है, वो ट्रांजैक्शन को 2 ही बास्केट में स्प्लिट करते हैं, गुड्स और सर्विसेज। बोथ के लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है टाइम ऑफ सप्लाई का, यानी बोथ वाला ट्रांजैक्शन भी आपको क्लासिफाई करना पड़ता है या तो गुड्स में या तो सर्विसेज में। आर यू गेटिंग मी? तो जब आपको रेट ऑफ टैक्स देखना है, टाइम ऑफ सप्लाई देखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है, तब आपको ट्रांजैक्शन को भले बोथ रहेगा बट आपको बास्केट में डालना पड़ेगा, या तो गुड्स के बास्केट में या तो सर्विस के बास्केट में।
तो आइसक्रीम एज गुड्स एंड सर्विस, तो संकेत जी गुड्स और सर्विस है, बट जैसे हमने कहा अगर बोथ है तो भी आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। आप बोथ करके निकल नहीं सकते, आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा या तो गुड्स या तो सर्विस। तो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग गुड्स, सम ऑफ यू आर सेइंग सर्विसेज। तो पहले ये समझते हैं कि गुड्स और सर्विस का डिफरेंस क्या है आइसक्रीम वालों को। तो पहली बात, तो ये आइसक्रीम पार्लर का जो ट्रांजैक्शन है इसको अगर आप गुड्स करके क्लासिफाई करोगे तो रेट ऑफ टैक्स आप देख सकते हो स्लाइड में 18%। इसको रेस्टोरेंट सर्विस करके क्लासिफाई करोगे तो रेट ऑफ टैक्स 5%। इंपॉर्टेंट टू नोट, कितना आ रहा है? 5%। तो किरण जी कह रहे कि आवाज बराबर नहीं है, अभी आ रहा है सर क्लियर? अभी शैलेश जी आवाज आ रहा है, क्लियर है या अभी भी ब्रेक हो रहा है आवाज? अच्छा नीलम जी अभी आ रहा है? अच्छा अभी भी आवाज नहीं आ रहा है? सर आवाज आ रहा है लेकिन आ रहा थोड़ा है। सा है ना, क्लियर नहीं है वो। अच्छा तो मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, ठीक है? तो अभी आ रहा है? अभी नाउ बेटर है? नहीं सर, नहीं अभी भी बेटर नहीं है, ब्रेक हो रहा है आवाज। नेटवर्क इश्यूज है। ओके अभी आ रहा है? अभी भी नहीं? नहीं सर, एक मिनट दीजिए, मैं एक network बार लॉग आउट प्रोग्राम करके की- फिर से लॉग इन करते हैं क्या? हाँ चलेगा ना, हाँ हाँ। एक मिनट दीजिए, मैं इसको skip कर रहा हूँ। तो अच्छा मैं लॉग आउट करूँ और फिर log in करूँ? क्या अभी बेटर है? ओ सॉरी सॉरी, अभी आ रहा है आवाज? अभी आ रहा है आवाज? क्लियर है अभी? सुनील जी परफेक्ट, किरण जी सुपर अमेजिंग। चलो मैं प्रेजेंटेशन चालू कर देता हूँ, 1 मिनट। शेयर स्क्रीन, तो वंडरफुल क्लासिफिकेशन शेयर, चलो कर दिया। स्क्रीन दिख रहा है आप सबको अभी? परफेक्ट, चलो स्क्रीन एनलार्ज कर लिया, अभी इसको मैं परफेक्ट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसा हमने बात किया, जैसा हमने बात किया अभी कि 5 और 18 ये डिबेट है अभी, बराबर है? अगर आप उसको सर्विस बोलोगे तो 5%, गुड्स बोलोगे तो 18%। तो लेट मी टेल यू, ये पर्टिकुलर केस में ना, ये पर्टिकुलर केस में जो टैक्स रेट था, जो टैक्स पेयर बोल रहा था कि इसके ऊपर कितना टैक्स आना चाहिए, टैक्स पेयर का व्यू था ये गुड्स वाले ट्रांजैक्शन है, यानी मैं आइसक्रीम बेच रहा हूँ, गुड्स बेच रहा हूँ, तो मैं 18% पे करूंगा। यू वुड बी सरप्राइज टू नो, डिपार्टमेंट ने, अथॉरिटीज ने कहा कि नहीं, आप 18% से टैक्स नहीं पे कर सकते, आपको 5% पे करना पड़ेगा, 5% पे करना पड़ेगा। तो यहां प्रॉब्लम हो गया, टैक्स पेयर 18% ज्यादा पे करना चाहता था, टैक्स अथॉरिटी बोल रहा था नहीं आप 5% पे करोगे। तो ये जो मैटर है ये क्यों डिबेट हुआ? बिकॉज शेड्यूल 2 में देयर इज अ स्पेसिफिक रेफरेंस अबाउट कंपोजिट सप्लाई, and whenever as a part of a service you supply goods, then that transaction qualifies to be a service only। तो 5% ही पे करना चाहिए था। तो आपको क्या, अरे टैक्स पेयर तो 18 का पे कर रहा था ज्यादा, तो गवर्नमेंट ऑफिसर को क्या प्रॉब्लम है?
गवर्नमेंट ऑफिसर को तो ज्यादा मिल रहा था ना 18%। तो एनी गेसेस अथॉरिटीज ने क्यों बोला कि 5% पे करो करके? एनी गेसेस? एनी गेसेस कि 5% क्यों? अथॉरिटीज, ऑफिसर बोल रहा था 5%। परफेक्ट आंसर रविंद्र जी, पंकज जी, सौरभ जी, श्री गोपाल जी। इनपुट टैक्स क्रेडिट, रोहिता जी, you're right, input tax credit, that was the debatable point, because जब when you pay 5%, no, ITC is not available. When you pay 18%, ITC becomes available. और ये जो पर्टिकुलर टैक्स पेयर था, उसके पास जो ITC था, ITC का कंपोनेंट ओवरऑल बेसिस पे इसका ITC का कंपोनेंट 14-15% आता था, बिकॉज इनका रेंट बहुत हाई रहता है। तो काफी सारी जगह इनका जो कैश में जीएसटी का पेमेंट था वो 2-3% था। तो यहां पर अथॉरिटी ने बोला जब 5% विदाउट आईटीसी है तो 5% सीधा गवर्नमेंट को कैश में मिल जाता है, सीधा स्ट्रेट अवे। तो वहां पर अथॉरिटीज ने कहा कि नहीं, हम इस ट्रांजैक्शन को गुड्स वाला ट्रांजैक्शन नहीं मानते हैं, हम सर्विस वाला मानेंगे और आपको आईटीसी डिनाई करेंगे और 5% कैश में आपको भरना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे बहुत डिबेट हुआ। फाइनली गवर्नमेंट ने 2021 में थ्रू सर्कुलर 164 क्लैरिफाई किया कि ये जो ट्रांजैक्शन है आइसक्रीम पार्लर के, यहां पर कंपोजिट सप्लाई नहीं है। बिकॉज अगर आप कंपोजिट सप्लाई शेड्यूल 2 में जाओगे, इट सेज फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज, यानी कि कंपोजिट सप्लाई होना चाहिए 2 से ज्यादा, यानी कि गुड्स प्लस सर्विस वहां पर होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि वो कंपोजिट सप्लाई है। तो टैक्स पेयर ने बोला कि मैं 2 सर्विस दे ही नहीं रहा, मैं आइसक्रीम बेच रहा हूं। मेरे पास अगर आप नेचुरल आइसक्रीम पार्लर या कोई भी आइसक्रीम पार्लर में जनरली जाओगे तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास जो है ना, हम आपको बैठने के लिए चेयर तक नहीं देते, तो सर्विस की क्या बात कर रहे हो? आपको हमारे काउंटर पे आके आइसक्रीम लेके जाना है। तो जैसा आप दुकान में जाके आइसक्रीम का कोन लेते हो, अमूल का कोन लेते हो, क्वालिटी वॉल्स का कोन लेते हो, तो एग्जैक्टली लाइक दैट हम आपको कोन दे देते हैं, आपको जब फ्लेवर जो पसंद है, हम आपको सिर्फ स्कूप करके आइसक्रीम दे रहे। तो कोई बना तो नहीं रहे, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है यहाँ पर, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग है और ना ही यहाँ पर कोई भी सर्विस हम दे रहे, कोई भी एम्बियंस हम दे रहे। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांजैक्शन है, दिस इज जस्ट अ ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन है तो प्योर सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो कोई भी कुकिंग वगैरह कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, तो हम 18% पे करना चाहते हैं। ये टैक्स पेयर ने खुद रिक्वेस्ट किया था क्लैरिफिकेशन के लिए, इसी अकॉर्डिंगली क्लैरिफिकेशन आया। सर्कुलर ने स्पेसिफिकली बोला कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, आइसक्रीम को सिर्फ स्कूप करके निकाला जाता है। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट, आइसक्रीम पार्लर इज नॉट अ काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट। यहाँ पर कोई कुकिंग नहीं, कुछ भी नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है, इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड अकॉर्डिंगली आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी जो टैक्स पेयर का व्यू था वो मैं कहूंगा सर्कुलर के थ्रू एक्सेप्ट किया गया। तो सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है अभी, अगर आपका कोई भी क्लाइंट अगर आइसक्रीम पार्लर है तो ये सर्कुलर के बाद में से 2021 से उसको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सिंपल ट्रांजैक्शन जहां आइसक्रीम पार्लर में आपको आइसक्रीम मिल रहा है। व्हाट अबाउट दिस काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन? ये टाइप के ट्रांजैक्शन को आप क्या बोलेंगे? जहां पर आपको आइसक्रीम बना के दिया जाता है, यहाँ पूना में उसको तवा आइसक्रीम बोलते हैं। आप में से किसी ने देखा ही है इसको? तवा आइसक्रीम बोलते हैं, या क्रीम एंड स्टोन करके है ना, या कोई आइसक्रीम शेक बना रहा है तो उसका क्या करेंगे अभी आप? ये सब क्वेश्चन सर्कुलर में कवर्ड ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये सब सिचुएशन यानी प्लेन वैनिला सिचुएशन उन्होंने कवर करके दे दिया, प्लेन वैनिला सिचुएशन उन्होंने कवर करके दे दिया। बट जहां पर भी आप मिक्सिंग करने वाले हो, आइसक्रीम 2-3 आइसक्रीम को मिक्स कर दिया, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दिए, चोको चिप्स डाल दिए, वो सब ट्रांजैक्शन के बारे में गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिटी दी नहीं है। इन आर व्यू जहां पर भी आप मिक्सिंग कर रहे हो वहां पर मेजर आपका एक्टिविटी मिक्सिंग का है, जैसा ये है क्रीम एंड स्टोन, द ट्रांजैक्शंस, ये प्लेसेस जो है दे विल क्वालिफाई एज रेस्टोरेंट्स। ये रिस्क आपके लिए है। अगर आप बोलोगे कि मैं 18% पे करूंगा और आईटीसी लूंगा, ऐसा मेरा सिचुएशन है, तो वहां पर प्लीज नोट करिएगा, अथॉरिटीज कहेगा सर्कुलर में लिखा है कि प्लेन वैनिला ट्रांजैक्शन, जहां पर आप आइसक्रीम निकाल के दे रहे हो सिर्फ स्कूपिंग करके, वही ट्रांजैक्शन
क्वालिफाई होंगे एज सप्लाई ऑफ गुड्स. ऑल अदर ट्रांजैक्शन जहां मिक्सिंग वगैरह कर रहे हो, दे विल नॉट क्वालिफाई. तो इन डेज टू कम यू वुड बी सीइंग दिस काइंड ऑफ डिबेट्स आल्सो. आई होप आप सबने ये पॉइंट अभी नोट किया है. चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, केस स्टडी 2. तो केस स्टडी 1 आपको समझ में आ गया, करेक्ट. केस स्टडी 2 जाते हैं. सो देयर इज अ टैक्स पेयर हु इज सप्लाइंग किट्स. इसका किट्स का काम क्या होता है पता है क्या? दवाई, सॉरी, डायग्नोस्टिक वगैरह जो होता है ना हॉस्पिटल में, जब हम जाते हैं हॉस्पिटल में कोई टेस्टिंग करने के लिए, तो हमारे वेन में से खून निकाला जाता है एंड वो जो मशीन रहता है उस मशीन में खून डाला जाता है जो भी टेस्टिंग के लिए निकाला है, एंड जो किट्स है वो किट्स डाली जाती है एंड फिर वो मशीन एनालाइज करके आपको रिजल्ट देता है. बराबर है. वो जो मशीन है एनालाइज करके आपको रिजल्ट देता है कि भैया ये जो भी रहेगा ये पॉजिटिव है क्या निगेटिव है. जैसे कोरोना, ये पेशेंट जो है जिसका खून निकाला गया, जो टेस्ट किया गया, वो पॉजिटिव है क्या निगेटिव है कोरोना के पर्सपेक्टिव से. तो अभी आप सबके लिए क्वेश्चन ये है, अगर आपका क्लाइंट ये किट्स सप्लाई करता है हॉस्पिटल्स को एंड पर किट चार्ज करता है, एंड वो मशीन जो है जो उसने हॉस्पिटल में रखी है, जो मशीन उसने हॉस्पिटल में रखी है, उसके थ्रू रिजल्ट आएगा. जो भी पेशेंट आएगा, खून निकाला, मशीन में डाला, वो किट डाला और फिर आपका रिजल्ट आपको बताए यस और नो. तो जब इस टाइप का आपका क्लाइंट का काम है, वो टेस्ट किट सप्लाई कर रहा है हॉस्पिटल में, उसमें मशीन रखा है जिस मशीन में किट डाला जाता है, पेशेंट का ब्लड या जो भी सैंपल डाला जाता है एंड बाद में रिजल्ट दिया जाता है. तो आप बताइए, और पर किट के बेसिस पे अगर आपका क्लाइंट चार्ज कर रहा है हॉस्पिटल को, तो बताइए कि यहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है कि सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है? व्हाट इज बीइंग सप्लाइड? तो सर आंसर आ रहे हैं गुड्स, सर्विस, सर्विस, गुड्स, 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 सर्विस इज इंसिडेंटल, ओनली किड्स एज गुड्स, बोथ. तो मोहसिन जी, बोथ का आंसर देके आप निकल नहीं सकते, आपको या तो गुड्स या सर्विस बोलना पड़ेगा, बिकॉज बोथ को भी हमको क्लासिफाई करना पड़ता है. सर्विस गुड्स, सर्विस गुड्स, यानी कि आप देख सकते हैं कैसा जीएसटी में एकदम सिंपल ट्रांजैक्शन, भी एकदम सिंपल ट्रांजैक्शन है किट का. डायग्नोस्टिक किट्स एकदम सिंपल ट्रांजैक्शन है, वहां पर भी अभी कंफ्यूजन है कि व्हाट इज द सप्लाई, मेजर सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? किट्स का सप्लाई है या वो मशीन का? मशीन के लिए कोई भी रेंट चार्ज नहीं कर रहा है क्लाइंट. सो मशीन का सप्लाई क्या किट्स का सप्लाई है? एंड इसमें मेन सप्लाई कौन सा है? मेन सप्लाई सर्विस है, बिकॉज डायग्नोस्टिक करके फाइनली आपको आंसर दिया जाने वाला है कि वो पेशेंट पॉजिटिव है कि निगेटिव है. लेकिन चार्ज जो है, जो चार्ज है, वो चार्ज जो है वो होने वाला है पर किट के बेसिस पे. और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर दो सप्लाई हो रही क्या? whether there are two supplies, one supply of kits from the kit manufacturer, your client, to hospital, and then second service or goods being supplied by hospital to patient. तो पहले ये एक सप्लाई है क्या दो सप्लाई है, वो देखना पड़ेगा आपको. In our view, there are two supplies, because एक है सप्लाई आपका किट्स का जो जा रहा है मैन्युफैक्चरर से हॉस्पिटल को, और दूसरा सप्लाई है हॉस्पिटल की तरफ से पेशेंट को कि डायग्नोस्टिक सर्विसेज करके. डायग्नोस्टिक सर्विसेज के बारे में तो आप सबको पता है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज आर बेसिकली एग्जम्प्टेड. कोई भी पैथोलॉजिकल टेस्ट आप करेंगे तो एग्जम्प्टेड है, उसके बारे में मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है. बट अभी ये जो सप्लाई है, जो आपका क्लाइंट जो किट्स मैन्युफैक्चर करता है, वो जो सप्लाई कर रहा है वो क्या है? इज इट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और इज इट अ सप्लाई ऑफ सर्विस? तो वहां पर जैसे हमने डेफिनेशन का जब रीडिंग चालू किया था, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमने
बात की थी, और वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आई थिंक मोस्ट ऑफ यू फॉरगॉट। वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सीक्वेंस, कि आपको पहले रूल आउट करना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन गुड्स का नहीं है। तो अगर ये ट्रांजैक्शन गुड्स का नहीं है तो ही वो सर्विस का हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट इन आवर व्यू वुड बी गुड्स। तो आप कहेंगे ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जहां पर मैन्युफैक्चरर हॉस्पिटल को किट सप्लाई कर रहा है, इज इट अ गुड्स ट्रांजैक्शन और सर्विस ट्रांजैक्शन? तो पहले सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, यानी अगर वो गुड्स का ट्रांजैक्शन नहीं है तो ही सर्विस होगा। तो पहले आपको बोलना पड़ेगा ये गुड्स का ट्रांजैक्शन है क्या नहीं। इन आवर व्यू सप्लाई ऑफ किट्स, जहां पर किट के बेसिस पे मैं हॉस्पिटल को चार्ज कर रहा हूं और मेरा क्लाइंट इज हॉस्पिटल, भले हॉस्पिटल बाद में पेशेंट को सर्विस दे रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है, डायग्नोस्टिक करके दे रहा है, इफ आई एम नॉट आंसरेबल टू पेशेंट, मेरा सप्लाई खत्म हो जाता है जब मैं किट सप्लाई कर देता हूं मेरे क्लाइंट को। तो इन आवर व्यू दिस ट्रांजैक्शन विल क्वालिफाई एज सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग एज सप्लाई ऑफ गुड्स, आप सर्विस की तरफ जा ही नहीं सकते, बिकॉज सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। अगर वो गुड्स है तो वो सर्विस करके क्वालिफाई नहीं होगा। तो आई होप आप सबको ये जो डिस्कशन है, ये जो केस स्टडी का जो आंसर है, ऑल ऑफ यू एग्री। अगर आप एग्री करते हो तो यस कहिएगा, अगर आप डिसएग्री करते हो तो नो कहिएगा, सो वी कैन डिबेट फर्दर। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेंशन इन द चैट बॉक्स। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग यस, तो परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि कैसे सिंपल आइसक्रीम वाला ट्रांजैक्शन, किड्स वाला ट्रांजैक्शन, हर जगह आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि भैया मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो गुड्स का है या सर्विस का है। बिकॉज एक बार आप गुड्स या सर्विस में आ जाते हो तभी आपको एग्जम्पशन बराबर आप देख पाओगे। बिकॉज अगर आपने बोला मेरा क्लाइंट का जो सर्विस है डायग्नोस्टिक सर्विस है, बिकॉज वो टेस्ट का जो सर्विस है, टेस्टिंग का सर्विस, तो आप एग्जम्पशन क्लेम कर लोगे। एग्जम्पशन क्लेम कर दोगे, ऑफिसर बोलेगा नहीं नहीं एग्जम्पशन तो रॉन्ग क्लेम कर दिया बिकॉज आपने तो गुड सप्लाई किए है, तो वहां फंस जाओगे, अननेसेसरी आपके ऊपर टैक्स का डिमांड आएगा। तो यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन डिटरमाइनिंग अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एज गुड्स और सर्विसेज। और फ्रेंड्स आप ये भी देख सकते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप क्वालिफाई करते हो एज गुड्स और सर्विसेज, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि भैया मैं कौन सा नोटिफिकेशन देखूं। बिकॉज गुड्स के नोटिफिकेशन अलग है। गुड्स का जो टैक्सेबल गुड्स का नोटिफिकेशन है 1/2017, एग्जम्प्ट वाला है 2/2017, सर्विसेज का है 11/2017 एंड एग्जम्पशन वाला है 12/2017। तो यानी आपको पहले ट्रांजैक्शन कौन सा है, गुड्स का है क्या सर्विस का है, वो देखना है, फिर जंप करना है एग्जम्पशन पे, फिर नोटिफिकेशन देखना है। जबकि मैंने बहुत बार देखा है, और हम काफी सारे क्लासिफिकेशन के शो को नोटिस राइट नाउ हैंडल कर रहे हैं, अलग अलग स्टेज पे, स्टेट में, सेंटर में, डीजीजीआई में, इन्वेस्टिगेशन के केसेस में। अभी जब हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं अथॉरिटीज के साथ, वहां पर हम वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइजर जो भी था, उनका इंटरनल टीम था, उनसे जब बात करते हैं तो वो एक गैप दिखता है कि बहुत बार लोग सीधा एग्जम्पशन को पढ़ लेते हैं विदाउट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ये ट्रांजैक्शन गुड्स है क्या सर्विस का है। सीधा एग्जम्पशन को पढ़ लेते हैं, बोलते हैं ये तो एग्जाम्प्ट एक्टिविटी, इसके ऊपर थोड़ी टैक्स है। और फ्रेंड्स आपको पहले देखना पड़ेगा कि मेरा ट्रांजैक्शन गुड्स है क्या सर्विस है, उसके बाद आपको देखना है मुझे कौन सा एग्जम्पशन लगता है, कौन सा एग्जम्पशन एप्लीकेबल है, तभी आप राइट आंसर पे आ पाओगे। बराबर है? तो ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, देन ओनली यू वुड बी इन अ पोजीशन टू गाइड योर क्लाइंट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी और एक केस स्टडी हम लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं गुड्स की, तो यहां पर आपको ब्रेड्स दिख रहे हैं, बराबर है? तो आपके सामने ये तीन आपको जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ब्रेड है, डोनट है एंड एक केक रस्क है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका प्रोडक्ट ब्रेड है तो ब्रेड के लिए गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया है, ब्रेड के लिए एग्जम्पशन है।
बराबर है, ब्रेड के लिए एग्जम्पशन है। तो आप बताइए जो टूटी फ्रूटी ब्रेड है उसको एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बन मस्का, तो बन मस्का यानी जो बन है उसको एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लॉ में लिखा है ब्रेड, तो ब्रेड को एग्जम्पशन है। तो बताइए ये जो आपके सामने पहला पिक्चर दिख रहा है वो एग्जम्प्ट है कि टैक्सेबल है? इज इट अ ब्रेड? टूटी फ्रूटी ब्रेड जो आपको दिख रहा है, टूटी फ्रूटी ब्रेड ब्रेड है क्या? लॉ में एग्जम्पशन दिया है ब्रेड को, तो बताइए एग्जम्पशन अवेलेबल है क्या नहीं? गोपाल जी कह रहे नो, मनीषा जी कह रही यस, रोहित जी सिंह नो, साक्षी जी सिंह नो, किरण सिंह यस, यानी कि बहुत आंसर हमको मिल रहे हैं। इन आर व्यू लॉ में जब ब्रेड को एग्जम्पशन दिया है तो ब्रेड में आप जीरा डालिएगा, अजवाइन डालिएगा, टूटी फ्रूटी डालिएगा, ब्रेड विल रिमेन ब्रेड ओनली। टू दैट एक्सटेंट यू कैन कंटिन्यू टू क्लेम द एग्जम्पशन। अभी दूसरा प्रोडक्ट पे आते हैं, डोनट। तो ये डोनट के केस में बताइए आपको एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डोनट के केस में, डोनट के केस में यहां पर आप बोल सकते हो कि ये भी ब्रेड है, सिर्फ ब्रेड के बीच में क्रीम डाला है, दैट्स इट। यू आर एडिंग क्रीम टू ब्रेड। तो जो डोनट है उसके ऊपर आपको एग्जम्पशन मिलेगा क्या? बिकॉज ब्रेड के लिए एग्जम्पशन है तो मैं डोनट के लिए भी एग्जम्पशन मांगू क्या? मैं कहूंगा कि नो जीएसटी पेबल। विकास जी, नीलम जी, सुवर्णा जी saying no, most of you are saying no, श्रीकांत जी saying no, मनीषा जी saying basic identity is getting changed, बट ब्रेड ही है ना, ब्रेड में मैंने सिर्फ क्रीम ऐड कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? ब्रेड में मैंने क्रीम ऐड कर दिया, ब्रेड तो ब्रेड ही रहा ना। स्वीट, अगर मैंने पहले वाले केस में ब्रेड को स्वीट किया, कैसे मैंने स्वीट किया? मैंने टूटी फ्रूटी डाली। यहां पर मैंने कैसे स्वीट किया? मैंने क्रीम डाल दिया। तो ये भी स्वीट ब्रेड है, ये भी स्वीट ब्रेड है। तो डोनट के केस में एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डोनट नहीं, चलो ये जो किरण जी, ये जो डोनट है उसको हीट नहीं करना पड़ता है, वैसे आप खा सकते हो, ये रेडीमेड डोनट रहते हैं। तो डिफरेंट कमर्शियल कमोडिटी। हेमंत जी, शैलेश जी, पैक प्रोडक्ट के लिए भी ब्रेड अगर पैक रहेगा तो भी एग्जम्पशन है। तो लेट मी टेल यू, जब भी जीएसटी लॉ या टू दैट एक्सटेंट आई वुड से एक्साइज और वैट लॉ में भी क्लासिफिकेशन के जब भी डिस्प्यूट आए हैं, एक थ्योरी इवॉल्व हुआ है, एक प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ है जिसको कॉमन पैरेलल्स थ्योरी कहा जाता है। तो जब कॉमन पैरेलल्स पे, यानी एक नॉर्मल दुकान पे आप जब जाएंगे और उसको बोलेंगे ब्रेड दो, तो जब आप ब्रेड मांगेंगे तो आपको डोनट नहीं दिया जाएगा। यानी कमर्शियली ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, ब्रेड अलग है, डोनट अलग है। तो जैसे ही प्रोडक्ट का एकदम कमर्शियल सेंस में अगर उसका नेचर चेंज हो जाता है, कमर्शियली उसको डिफरेंटली अंडरस्टैंड किया जाता है, तो वैसे केस में जब कमर्शियली आप उसको डिफरेंट प्रोडक्ट बोल रहे हो, तो वैसे पर्टिकुलर केस में आप इस चीज को, डोनट को ब्रेड नहीं बोल पाओगे। अगर वो ब्रेड नहीं है तो आपको एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगा, भले ये ब्रेड के अंदर क्रीम डाला, यानी कि एक ही चीज आपने ऐड किया, बट कमर्शियली उसके वजह से उस प्रोडक्ट को डिफरेंटली जाना जाता है। आप पैकिंग करके जब कस्टमर को डिफरेंटली उसको सेल कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली आप उसको, इस प्रोडक्ट को आप ब्रेड करके एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ कॉमन पैरेलल्स थ्योरी। कॉमन पैरेलल्स यानी कॉमन पैरेलल्स में, कॉमन अंडरस्टैंडिंग में, जनरल अंडरस्टैंडिंग में कॉमन मैन, एक लेमैन इस प्रोडक्ट को अगर डिफरेंट आइडेंटिटी की तरह से देखता है, डिफरेंट देखता है, एक सेपरेट प्रोडक्ट करके देखता है, तो जो एग्जम्पशन ब्रेड को दिया है वो डोनट को नहीं मिलेगा। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर। नाउ तीसरा प्रोडक्ट है आपके सामने, केक। तो केक भी तो ब्रेड ही है, स्वीट ब्रेड है, बिकॉज जैसा केक का लोफ आप देख सकते हो,
वैसा ही ब्रेड का स्लाइस ब्रेड रहता है। जो आपका सैंडविच ब्रेड है उसमें ये ब्रेड में टूटी फ्रूटी डाल दिया और थोड़ा स्वीट कर दिया। तो केक और जो आपका ब्रेड है उसमें डिफरेंस क्या है? दोनों में एक ही डिफरेंस है, जो आपका ब्रेड है वो स्वीट नहीं है, ये स्वीट है। तो अगर मैं केक का इस तरह से स्लाइस करके केक को बेच रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर टैक्स पे करूंगा कि नहीं पे करूंगा? और कहने से जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है जो केक, वो भी ब्रेड है। परफेक्ट सेम एनालॉजी एज डोनट। परफेक्ट, ऑल ऑफ यू आर राइट। जो पहला वाला प्रोडक्ट है उसको ब्रेड करके आप एग्जम्पशन क्लेम कर पाएंगे, जो दूसरा और तीसरा वाला प्रोडक्ट है वहां पर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अभी और थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेशन कर देता हूं। आप सबको मस्का खारी पता है? मस्का खारी, पुनेरी खारी करके, मस्का खारी करके प्रोडक्ट आता है, ट्विस्टेड खारी वगैरह करके, बराबर है? तो मस्का खारी का क्या? मस्का खारी के लिए जो रिलेवेंट एंट्री है, अनफॉर्चुनेटली मुझे वो स्लाइड जो है ना वो दिख नहीं रहा है राइट नाउ, तो मैं आपको एंट्री बता देता हूं। मस्का खारी यानी कि जो टोस्ट होता है, टोस्ट, तो जो एंट्री है मैं आपको टाइप करके यहां टाइप कर रहा हूं, रस्क, टोस्ट एंड सिमिलर टोस्टेड प्रोडक्ट्स। ये जो एंट्री है, रस्क, टोस्ट एंड सिमिलर टोस्टेड प्रोडक्ट, इसके लिए जीएसटी लॉ में 5% का रेट है, 5% का। तो आप सबके लिए क्वेश्चन है, जो मस्का खारी है उसके लिए कौन सा रेट लगेगा? रस्क, टोस्ट एंड सिमिलर टोस्टेड प्रोडक्ट। तो आप बताइएगा मस्का खारी के लिए कौन सा रेट लगेगा? यस, वो स्लाइड जो है ना अनफॉर्चुनेटली यहाँ दिख नहीं रहा है, तो मैंने इसके लिए टाइपिंग में आप चैट बॉक्स में जाइएगा, चैट बॉक्स में मैंने वो एंट्री रिप्रोड्यूस किया है। रस्क, टोस्ट एंड सिमिलर टोस्टेड प्रोडक्ट के लिए 5% का रेट है। तो अगर आप मस्का खारी बेच रहे हो तो 5% मिलेगा क्या? सुरेंद्र जी कह रहे 5%, मनीषा जी कह रहे 5%। नॉट 5%। तो लेट मी टेल यू, जो मस्का खारी है वो भी टोस्टिंग से ही बनता है। प्रोडक्ट डिफरेंट है, बट लॉ में 3 प्रोडक्ट के बारे में बोला गया है, टोस्ट, रस्क एंड सिमिलर टोस्टेड प्रोडक्ट। तो मस्का खारी टोस्टिंग से ही बनता है। तो अगर मस्का खारी टोस्टिंग से बनता है, मस्का खारी अगर टोस्टिंग से बनता है तो सिमिलर प्रोडक्ट के हिसाब से 5% पे कर सकते हो। इन आर व्यू ऑल्सो यस, ये आपका आंसर आ सकता है, बिकॉज इट इज सिमिलर टोस्टेड प्रोडक्ट। लेकिन आपको प्रैक्टिकल कॉल लेना पड़ेगा यहां पर। अगर आपके क्लाइंट का मस्का खारी वगैरह प्रोडक्ट का टर्नओवर ये करोड़ में है, तो आपको क्लाइंट को बोलना पड़ेगा भैया 13% का डिफरेंस है, बिकॉज 5% और 18% में 13% का डिफरेंस है। कमर्शियली अगर आपका हर साल 2 करोड़ का अगर सेल है तो इफेक्टिवली 26 लाख का एडिशनल लायबिलिटी है। 5 साल में वो लायबिलिटी हो जाएगा मोर देन 1 करोड़। तो इसके वजह से कमर्शियली टैक्स पेयर को, क्लाइंट को कॉल लेना पड़ेगा कि इज ही विलिंग टू लिटिगेट, बिकॉज डिपार्टमेंट क्वेश्चन करने वाला है। डिपार्टमेंट कहेगा ये सिमिलर टोस्टेड प्रोडक्ट नहीं है, डिपार्टमेंट कहेगा रस्क एंड टोस्ट में, और उसके जैसे ही प्रोडक्ट मस्का खारी जो है वो डिफरेंटली दिखता है। कोई भी उसको टोस्ट नहीं मानेगा, कोई भी उसको रस्क नहीं मानेगा। तो बिकॉज इट इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, उसको ये 5% का कंसेशन नहीं मिलेगा। एंड अगर उसको 5% का कंसेशन नहीं मिलेगा तो सडनली उसको एक दिन नोटिस आ जाएगा, वो भी डिफरेंशियल 13% का। तो आपको ये प्रैक्टिकल कॉल लेना पड़ेगा। ऐसे जब भी आप डिसीजन लेते हो तो आपके क्लाइंट को जरूर एक कम्युनिकेट करिएगा, बेसिस क्या है, डिस्कस करिएगा, डिबेट करिएगा। अगर प्रेफरेबल है तो 1 या 2 कंसल्टेंट से राइटिंग में ऐसे डिबेटेबल इश्यूज में ओपिनियन लीजिएगा।
बिकॉज यहाँ पर सडनली ना बाद में करोड़ में लाइबिलिटी आ जाता है, एंड वहां पर टैक्स अथॉरिटीज बहुत बार इन्वेस्टिगेशन के केस में ना एग्रेसिवली आते हैं, यानी कि बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान से, जहां पर भी आप ऐसे कोई भी कंसेशनल रेट अप्लाई कर रहे हो, बहुत ध्यान से टैक्स पोजीशन लेनी चाहिए। आई होप आपको आंसर मिल गया है। एम आई क्लियर? हमारे व्यू से 5% है, बट बिकॉज अथॉरिटीज विल बी अ बिट एग्रेसिव क्लासिफिकेशन के केसेस में, दे माइट बी एग्रेसिव। इसके लिए जैसे हमने कहा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। आई होप आपको आंसर मिल गया है। तो आगे बढ़े हम। अभी तक जो डिस्कस किया, आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू कैच दैट डिस्कशन, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट डिस्कशन। तो आगे चले। नीलजी सिंह, यस। ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स, गाड़ी बराबर जा रहा है? यस, थैंक यू ऑल, थैंक्स, परफेक्ट। चलो शैलेश जी, विकास जी, रोहित जी, थैंक्स। आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको अभी स्लाइड पे क्या दिख रहा है? व्हाट यू कैन सी, व्हाट आर यू एबल टू सी? तो कोमट पानी है, जास्त कोमट। बोल्ट्स एंड नट्स, करेक्ट? नट एंड बोल्ट आपको दिख रहे हैं? तो नट एंड बोल्ट के केस में आप बताइए, मैं आपको 2 एंट्री देता हूं नट एंड बोल्ट की केस में। एक है नट एंड बोल्ट स्क्रूज एंड बोल्ट, जहां पर 18% का टैक्स रेट है, और दूसरा है पार्ट्स ऑफ कार, जहां पर 28% का टैक्स रेट है। बराबर है? तो आप बताइए, जो प्रोडक्ट है जो मैंने आपको दिखाया, वो 18% में आएगा कि 28% में? आप सबके सामने एंट्री आपको दिख रहा है 232 नंबर का, स्क्रूज बोल्ट्स। ये पढ़ लिया आपने, स्क्रूज बोल्ट वाला एंट्री? तो बताइए 18% में आएगा, इसके अंदर आएगा? ये नट एंड बोल्ट स्क्रूज एंड बोल्ट्स के जैसा दिख रही है? विकास जी, नीलम जी, रोहित जी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर सेइंग 18%। बराबर है? तो अभी आपको नेक्स्ट एंट्री में दिखाता हूं 170 नंबर का, नोटिफिकेशन 1/2017 का। उसमें क्या लिखा है? पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ऑफ मोटर व्हीकल। बराबर है? तो अगर ये नट एंड बोल्ट अपने टाटा मोटर्स को बेचे, अगर आपने ये नट एंड बोल्ट टाटा मोटर्स को बेचे, तो बिकॉज यहां क्या लिखा है? पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ऑफ मोटर व्हीकल, तो आप उसको 18% में डालोगे क्या 28% में? सुरेंद्र जी सेइंग 18, विकास जी सेइंग देन आल्सो 18%, शैलेश जी सेइंग देन आल्सो 18%। बिकॉज 2 अलग अलग एंट्री है, एक है स्क्रूज बोल्ट्स और दूसरा है उसका एंड यूज, जो जा रहा है पार्ट्स एंड एक्सेसरीज करके। तो मनीषा जी सेइंग बेस्ड ऑन एंड यूज। तो अगर मैंने उसका फर्नीचर में यूज किया तो 18, एंड अगर मैंने उसका यूज अगर मैंने कार में किया तो 28। पर फिर तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना मेरे गुड्स का यूज हो रहे हैं। टाटा मोटर्स ने मेरे से गुड्स लिए और बाद में टाटा मोटर्स ने उस गुड्स को स्क्रैप कर दिया, कार में यूज ही नहीं किए, तो मैंने तो सोचा था वो कार में यूज करेंगे और 28% लगा दिया, और बाद में उन्होंने अगर कार में यूज ही नहीं किए तो देन व्हाट? यानी मैं कैसे किस तरह से चेक करूं एंड यूज प्रोडक्ट का? तो एंड यूज कहना बहुत इजी है, बट डिफिकल्ट है ना। अगर कोई तो भी मैन्युफैक्चर आना चाहता है, बराबर है, एबीसी लिमिटेड, अभी उसके नाम से मुझे पता ही नहीं है वो कार बनाता है कि नहीं बनाता है, तो मैं क्या चेक करूं क्या उसके फैक्ट्री में जाके कि भैया जिसने मेरे से नट बोल्ट लिए वो किधर यूज कर रहा है? उसने अगर टाटा मोटर्स को आगे बेचे तो मुझे तो पता ही नहीं, उसने मुझसे लिए और उसने आगे बेच दिए, तो आई विल नेवर बी इन अ पोजीशन टू नो द एंड यूज, नो। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन आने वाला है काफी सारे टैक्स पेयर के पास, जहां पर उनका प्रोडक्ट 2 एंट्री में क्लासिफाई हो सकता है। एक है स्पेसिफिक एंट्री स्क्रूज नट्स एंड बोल्ट, और दूसरा है जेनरिक एंट्री बेस्ड ऑन एंड यूज। यहां पर अगर टैक्स रेट का डिफरेंस जैसा ये पर्टिकुलर केस में 28% और 18% है, पार्ट्स ऑफ कार बोला तो 28%,
एंड अगर आप उसको नॉर्मल बोलोगे तो 18%। तो सीधा 10% का डिफरेंस है। हमारे क्लाइंट के केस में उनका पर एनम टर्नओवर लगभग 200 करोड़ है। तो 10% का डिफरेंस बोला तो पर एनम कितना हो जाता है? 200 करोड़ पे 10% 20 करोड़। पिछले 5 सालों का टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा ऐसे केस में? पिछले 5 सालों का 20 करोड़ के हिसाब से 5 साल का 100 करोड़ इंटरेस्ट पेनल्टी आप ऐड कर दोगे तो लगभग 200 करोड़ हो जाएगा। यानी जितना उनका टर्नओवर है हर साल का 200 करोड़, उतना तो उनका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। तो अगर आपका कोई भी क्लाइंट है, जो मैं कह रहा हूं मैन्युफैक्चरर है एंड पार्ट्स बनाता है क्लाइंट, उसके अगर कस्टमर अगर उसके ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, तो आप जरूर ये चेक करिएगा ये सेशन के बाद कि भैया जीएसटी का रेट वो क्या लगा रहा है। अगर 18 लगा रहा है एंड लाइकली रेट 28 अगर है, तो इमीडिएटली उसको रिस्क हाईलाइट करिएगा और गोइंग फॉरवर्ड आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, शुड आई कंटिन्यू टू चार्ज 18 और 28। बराबर है। एकेडमिकली हम डिबेट कर सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कमर्शियल उसका इम्प्लीकेशन बहुत हेवी है। अगर 200 करोड़ का टर्नओवर है, 10% के हिसाब से 20 करोड़ एक साल का लायबिलिटी, तो 5 साल 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट पेनल्टी 200 करोड़ हो जाएगा लायबिलिटी। तो उसको तो दुकान क्या फैक्ट्री बेचना पड़ेगा, बिकॉज एक साल का टर्नओवर 200 करोड़ है और 200 करोड़ का तो आप डिमांड कर रहे हो टैक्स, इंटरेस्ट पेनल्टी, अरेस्ट, इवेजन वगैरह की वजह से अरेस्ट हो सकता है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है, बिकॉज अमाउंट बहुत बड़े हैं। तो ऐसे केस में आपको बहुत केयरफुली क्लाइंट को एडवाइस करना पड़ेगा। अभी तो ये एडवाइस करने के लिए आपको क्या देखना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस तरह से जीएसटी का नोटिफिकेशन पढ़ूंगा। तो अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, राइट एंट्री आइडेंटिफाई करना है, राइट टैक्स ऑफ रेट आइडेंटिफाई करना है, तो आपको जाना पड़ेगा नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 पे। 1/2017 का अगर आप लास्ट वाला एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, तो वो एक्सप्लेनेशन में उन्होंने बोला है कि जो भी एंट्री आपको पढ़ना है, उसका हेडिंग सब हेडिंग जो भी आपको पढ़ना है, वो आपको पढ़ने के लिए कस्टम टैरिफ एक्ट का जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जो उसके सेक्शन नोट चैप्टर नोट है, उनका भी आप रेफरेंस ले सकते हो। और जो भी टैरिफ हेडिंग दी गई है, उसका जो रेफरेंस है, जो मीनिंग है, वो रिस्पेक्टिवली कस्टम टैरिफ एक्ट से ही आता है। यानी कि जीएसटी में जो नोटिफिकेशन दिए गए उसका इंटरप्रिटेशन का इश्यू आएगा, तो आपका पहला जो सॉल्यूशन है, जो पहला डायरेक्शन है, जो पहला डोर आपने नॉक करना है, वो डोर है टैरिफ एक्ट का। और कौन सा टैरिफ एक्ट? कस्टम टैरिफ एक्ट का। एंड कस्टम टैरिफ एक्ट के जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, सेक्शन नोट चैप्टर नोट है, वो आपने देखने हैं। बराबर है। तो पहले कस्टम टैरिफ एक्ट में जाना है आपने। कस्टम टैरिफ एक्ट में जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, वो क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन दिस शेड्यूल शैल बी गवर्न बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो पहला प्रिंसिपल है, जब भी कोई भी टाइटल वगैरह का रेफरेंस जब आप पढ़ रहे हो, जैसे हमने एक एंट्री पढ़ा स्क्रूज नट्स एंड बोल्ट, बराबर है। तो स्क्रूज एंड नट्स, तो वहां पर क्या लिखा है कि द टाइटल ऑफ सेक्शन, चैप्टर, सब chapter are provided for ease of reference only. For legal purposes, classification shall be determined in terms of heading and relative section and chapter notes. तो आपने पहले हेडिंग देखना है। तो अभी इसका हेडिंग क्या है, ये एंट्री का, वो देखते हैं। बराबर है। तो 7318 जो टैरिफ का एंट्री है, उसका हेडिंग बोलता है स्क्रूज, बोल्ट्स एंड नट्स। तो बहुत ही स्पेसिफिक हेडिंग दिया है, स्क्रूज, बोल्ट्स एंड नट्स। तो अगर मेरा प्रोडक्ट हेडिंग के हिसाब से क्लासिफाई हो रहा है, तो मुझे मेरे प्रोडक्ट को क्लासिफाई 7318 में ही करना है। तो पहला प्रिंसिपल है, मैंने हेडिंग सब हेडिंग पढ़ना चाहिए। और मेरा प्रोडक्ट अगर हेडिंग सब हेडिंग में कवर हो रहा है, तो मेरे प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन वहां पर खत्म हो जाता है। आई डिड नॉट मूव फर्दर। बराबर है। उसके बाद अगर उसके बाद भी मुझे कोई कंफ्यूजन है, आई कैन गो टू रिलेवेंट सेक्शन नोट एंड चैप्टर नोट। बराबर है। तो सेक्शन नोट एंड चैप्टर नोट क्या बोलता है, वो देखते हैं हम। सेक्शन नोट जो रेफर किए गए हैं, वो नोट 2A, बिकॉज ये सेक्शन 15 में आता है, XB में आता है। ये पर्टिकुलर जो 73 नंबर का जो चैप्टर है, 73 नंबर का चैप्टर, वो सेक्शन 15 में आता है। बिकॉज जो भी क्लासिफिकेशन हम करते हैं, जब भी हम टैरिफ में जाते हैं,
तो टैरिफ इज डिवाइडेड इन डिफरेंट सेक्शंस एंड सेक्शंस को बाद में डिफरेंट चैप्टर्स में स्प्लिट किया गया है। तो सेक्शन 15 में चैप्टर 73 आता है, तो उसका जो स्पेसिफिक नोट नंबर 2 सब क्लॉज ए है वो क्या बोलता है वो पढ़ते हैं। थ्रूआउट दिस शेड्यूल द एक्सप्रेशन पार्ट्स ऑफ जनरल यूज शैल मीन आर्टिकल ऑफ हेडिंग 7318 यानी कि जो पार्ट्स ऑफ जनरल यूज है, तो भले वो पार्ट आप स्पेसिफिकली यूज करो कार में, तो भी उनको पार्ट्स ऑफ जनरल यूज ही माना जाएगा। यानी पार्ट्स ऑफ जनरल यूज यानी कि जो 7318 वाले जो नट्स एंड बोल्ट्स है, उनको भले आपने स्पेसिफिकली यूज किया, तो भी आपको उसको क्या बोलना पड़ेगा कि भैया वो पार्ट्स ऑफ जनरल यूज ही है। बिकॉज मुझे पता नहीं ना कि मेरा जो पार्ट है जो नट बोल्ट लेके जा रहा है किधर यूज करने वाला है, फर्नीचर में, चेयर में, टेबल में या कार में, मुझे पता नहीं है। तो उनको भी पता है, जो टैरिफ जिसने डिजाइन किया है उसको भी पता है कि भैया ये जो 7318 वाले स्क्रूज नट बोल्ट है वो किधर भी यूज हो सकते हैं। तो टैक्स पेयर को क्यों हम कंफ्यूजन में डाले टैक्स रेट के बारे में, तो उन्होंने बोला कि पार्ट्स ऑफ जनरल यूज मींस एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन आर्टिकल्स ऑफ 7318 यानी 7318 में जो नट्स एंड बोल्ट्स आते हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ जनरल यूज ही बोलेंगे। अगर वो पार्ट्स ऑफ जनरल यूज है तो उसका टैक्स रेट क्या लगेगा, 7318 वाला लगेगा। 7318 वाला टैक्स रेट है 18%। तो यानी बेस्ड ऑन नोट 2A ऑफ सेक्शन 15 आप बोल सकते हो आपका अगर मैन्युफैक्चरर क्लाइंट अगर नट्स एंड बोल्ट्स बनाता है, भले वो नट्स एंड बोल्ट्स कार में यूज होते हैं, फिर भी आप टैक्स पोजीशन ले सकते हो कि भैया मेरा टैक्स रेट रहेगा 18%। दूसरा, आपको अगर टैरिफ के बेसिस पे भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, अगर आपको टैरिफ के बेसिस पे भी कंफ्यूजन है, तो आप जा सकते हो HSN गाइड में। HSN यानी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का जो गाइड है, जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन किया है, WCO ने। तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेसिफिक नोट्स है उसका काफी ज्यादा वैलिडिटी रहता है, उसको काफी सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी सारे केसेस में रेफर किया है। बिकॉज आप सबको पता है जो इंडियन कस्टम का जो टैरिफ है वो किसके ऊपर बेस्ड है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो HSN का गाइड है जो WCO ने इशू किया है उसी ऊपर हमारा टैरिफ बेस्ड है, कस्टम टैरिफ। तो जब भी कस्टम टैरिफ में हम रेफरेंस कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, यू हैव ऑल द राइट्स टू रेफर टू वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का HSN गाइड। तो अगर आप वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का गाइड को रेफर करोगे, सेक्शन 15 को रेफर करोगे, वहां पर आप देख सकते हो, वहां पर भी एक एग्जांपल में उन्होंने लिखा है, स्प्रिंग का एग्जांपल लिखा है कि अगर कोई स्प्रिंग वगैरह है, भले वो मोटर व्हीकल में अगर यूज होने वाली है, लेकिन स्प्रिंग अगर कोई स्पेसिफिक हेडिंग में आती है तो उसका क्लासिफिकेशन स्प्रिंग करके ही होगा, नॉट एज पार्ट्स ऑफ मोटर व्हीकल। तो इंस्टेड ऑफ स्प्रिंग अगर आप उसको बोल्ट बोलते हो 7318 वाला, तो सेम आंसर आएगा। तो जब भी आप बोल्ट बना रहे हो, नट बोल्ट बना रहे हो, और उसका अगर क्लासिफिकेशन 7318 में आता है, भले वो नट बोल्ट को आप कार में यूज करने वाले हो, फिर भी उसका क्लासिफिकेशन 7318 ही रहेगा। यानी इवन बेस्ड ऑन वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के गाइड के हिसाब से आप बोल सकते हो आपका जो प्रोडक्ट है दैट वुड बी क्लासिफाइड एज बेसिकली 7318 स्क्रूज, नट्स एंड बोल्ट। तो ये 4 रीजन है जो आपको स्लाइड पे दिख रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हो 18% का रेट लगेगा, नॉट 28% का। बट फ्रेंड्स प्लीज नोट करिएगा, ये जो इशू है ये बहुत हेवीली डिबेटेबल इशू है। भले आपके फेवर में काफी सारा जजमेंट्स है, काफी सारे सेक्शन नोट, चैप्टर नोट्स है, बट नोट करिएगा कि जहां पर आपके टैक्स पेयर का टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है ऐसे प्रोडक्ट्स में, वहां पर ऑडिट में, इन्वेस्टिगेशन में लायबिलिटी बहुत ज्यादा बनता है। और जहां लायबिलिटी हेवी बनेगा वहां पर आपको जब इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट, असेसमेंट होगा, स्ट्रांगली आपको जो ऑफिसर है वो बहुत स्ट्रांगली इस चीज को पुट करेंगे कि आपका टैक्स रेट हेवी रहेगा करके, और आपको टैक्स लायबिलिटी भरना पड़ेगा, नहीं तो हम अरेस्ट करेंगे, इस चीज को हम आगे लेके जाएंगे वगैरह, प्रोसिक्यूशन करेंगे। इसके लिए आपको कपल ऑफ ऐसे केसेस में जहां पर करोड़ में लायबिलिटी आता है, प्रैक्टिकल कॉल लेना पड़ेगा आपको, आपके क्लाइंट के साथ डिटेल में बात करना पड़ेगा। आपने 2 या 3 कंसल्टेंट का राइटिंग में ओपिनियन देना चाहिए ऐसे केस में,
बराबर है, और उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। प्लस आप ये भी देख सकते हो, अगर आपका क्लाइंट अगर कार मैन्युफैक्चरर है, अगर उसको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो ऐसे केस में आपने ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए। आप आपके क्लाइंट से बात करो, उनसे बात करके अगर वो 28% के लिए एग्री है तो 28% चार्ज करके उसको क्रेडिट मिलने वाला है। तो भाई यू वांट टू डिबेट दिस पॉइंट, बिकॉज आगे जाके जब शो कॉज नोटिस आएगा, एज अ कंसल्टेंट आप फाइट करेंगे, हम भी फाइट करेंगे, लेकिन नोट करिएगा क्लाइंट को इंटरेस्ट भी, सॉरी क्लाइंट को प्री डिपॉजिट भी करना पड़ता है, तो उसका भी लाइबिलिटी आ जाता है ना प्री डिपॉजिट का। प्लस उनके सर पे तलवार रहेगा, यू नेवर नो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से इस टाइप चीज को आर्ग्यू किया जाता है, यू नेवर नो कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये सब केस में क्या कहेगा। तो इसके लिए इट इज ऑलवेज बेटर टू अडॉप्ट अ प्रैक्टिकल व्यू, कस्टमर से बात करके, क्लाइंट से बात करके, मल्टीपल कंसल्टेंट से बात करके अपने फाइनली व्यू लेना चाहिए। आई होप आपको ये जो इशू था क्लासिफिकेशन का, ये फास्टनर्स का, नट बोल्ट का अप्रोप्रिएटली समझ में आ गया। अभी हम आगे बढ़े। आई होप कि आपको आंसर राइटली मिल गया है ये केस का। अभी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा इस इशू पे तो हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यस, आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट टू से यस और नो। और ये जो हमने केस स्टडी डिस्कस किया उसका आपको क्या लग रहा है, बराबर डिस्कशन हुआ है अब तक जो हमने डिस्कस किया? आई होप कि आप सबको डिस्कशन में मजा आ रहा है। थैंक्स रोहिदास जी, थैंक्स शैलेश जी, थैंक्स सुनील जी, थैंक्स सुरेंद्र जी, थैंक्स सुरेंद्र जी, शर्मिष्ठा जी, रोहित जी। आई होप आपको सबको जो क्लासिफिकेशन के लिए डिस्प्यूट है, और मैं आपको बता दूं आज आपको शायद ये क्लासिफिकेशन के डिस्प्यूट अब तक आए नहीं है आपके पास। उसका रीजन है काफी सारे क्लाइंट्स का जो ऑडिट था ना 17, 18, 18, 19 से पहले 2 साल जीएसटी अथॉरिटीज ने कभी भी किसी का ऑडिट निकाला ही नहीं। पहले 2 साल उन्होंने कहा भैया जीएसटी आया है, आप आराम से इंप्लीमेंट करो, बराबर है। हम तो अभी एक्साइज और सर्विस टैक्स पे लगे पड़े हैं, तो पहले 2 साल वो सर्विस टैक्स, एक्साइज और वैट का असेसमेंट कर रहे थे। उसके बाद में जब 20, 21, 21, 22 आया तो उस टाइम पे कोरोना का फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव वो सब सर्कस चल रहा था, तो लगभग वहां पर भी कोई ऑडिट हो नहीं पाया। तो अभी 2022-23 में अभी ऑडिट चालू हुए हैं, अभी ये सब इश्यूज निकलना चालू हुए हैं। और आपको पता रहेगा अभी जून 2023 में लास्ट डेट है जो अपना नॉर्मल केस का, फ्रॉड का नहीं, नॉर्मल केस का। तो वहां पर भी आप देख सकते हो नॉर्मल केस में काफी सारे ऑडिट अभी क्लोज होंगे ना, तो वहां पर काफी सारी डिमांड निकल सकती है। और अगर नॉर्मल केस में नहीं हुआ तो फ्रॉड वाले केस में डिपार्टमेंट को 5 साल का एक्सटेंडेड टाइम मिलता ही है, तो वहां पर 2025 तक डिपार्टमेंट को टाइम है टू इश्यू शो कॉज नोटिस। तो अगले 3-4 महीने में काफी सारे नोटिसेस निकलेंगी, और उसके बाद भी बिकॉज एक्सटेंडेड पीरियड 2025 तक का है, अगले 2-2.25 साल में मेरे हिसाब से क्लासिफिकेशन के बहुत सारे डिस्प्यूट आपके टेबल पे आने वाले एज ए कंसल्टेंट। तो वहां पर जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत रिलेवेंट रहेगा, बराबर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपके क्लाइंट्स का आप जीएसटी ऑडिट करते हो, जीएसटी का रिटेनरशिप करते हो, क्लाइंट को गाइड करते हो, भले आप इनकम टैक्स कर रहे हो, जीएसटी देखते भी ना हो, लेकिन आपने अगर आज हमने जो अलग अलग केस स्टडीज डिस्कस की है तो उस बेसिस पे आप पक्का चेक करिएगा आपके की क्लाइंट में कि भैया कहीं पर हमारा क्लाइंट 5% तो नहीं पे कर रहा है कंसेशनल रेट, कहीं पर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर उसके क्लाइंट है और 18% तो नहीं पे कर रहा है। तो अगर वैसा सिचुएशन है तो जरूर उनसे बात करिएगा, समझिएगा, एंड देन फाइनली क्लाइंट को गाइड करिएगा, ठीक है। द क्लाइंट वुड बी वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर गाइडिंग यू इन राइट वे। चलो, तो अभी तक हमने काफी सारे केस स्टडीज डिस्कस किए। अब आगे वाले जो केस स्टडीज है ना, मैं जो रिलेवेंट मुझे लग रहा है, बिकॉज हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया, उसके बेसिस पे मैं जो रिलेवेंट है वो केस स्टडीज डिस्कस करता हूँ। वाटर का आपको पता रहेगा काफी सारी सोसाइटीज में वाटर का सप्लाई किया जाता है, बराबर है। तो यहाँ पर आपका जो क्लाइंट है आरडब्ल्यू रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, वो अगर वाटर सप्लाई कर रहा है, बराबर है, आपके मेंबर्स को, तो उन्होंने अगर कहा कि दे आर क्लेमिंग वाटर के लिए, वाटर जो भी टैंकर का रिइंबर्समेंट, सो दे कैन ऑलवेज से कि भैया मेरा जो वाटर का रिइंबर्समेंट है वो एग्जम्प्ट है बिकॉज आई एम सेलिंग वाटर, वाटर के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है। बट देन दूसरा प्रॉब्लम है
कि आपका क्लाइंट वाटर सेल कर रहा है कि आपका क्लाइंट सर्विस दे रहा है। बिकॉज सोसाइटी जो है, सोसाइटी इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑफ वाटर, सोसाइटी इज इन द बिजनेस ऑफ बेसिकली मैनेजिंग द सोसाइटी। उसके कंटेक्स्ट में वो वाटर भी सप्लाई करती है, बराबर है। सो द टाइम यू से इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, the time you say it is a composite supply, even if you enter into two agreement, the tax authorities can contend कि water का ये supply नहीं है, service का supply है। and अगर आपका सोसाइटी का बिल पर मंथ पर रेसिडेंट अगर 7,500 रुपए का है, टोटल मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 के ऊपर है, तो अथॉरिटीज आपसे टैक्स डिमांड कर सकती है। तो इसके लिए ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कहां पर आप ट्रांजैक्शन को, जैसे हमने कहा वाटर को अगर आप सर्विस बोल के बोलोगे टैक्सेबल हो रहा है, वाटर को प्योर वाटर बोल के बोलोगे क्लासिफिकेशन तो टैक्सेबल नहीं हो रहा है, एग्जम्पशन मिल रहा है। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप ऑडिट असेसमेंट कर रहे हो, बिकॉज बहुत बार सोसाइटीज ऐसे चार्जेस को रीइंबर्समेंट करके देता है, बराबर है। तो जस्ट बी अ बिट केयरफुल कि आपका सोसाइटी ऐसे कोई चार्जेस को रीइंबर्समेंट करके सप्लाई ऑफ गुड्स करके तो नहीं ट्रीट कर रहा है और एग्जम्पशन तो नहीं क्लेम कर रहा है, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आपका कोई क्लाइंट हो सकता है जो रेंटिंग कर रहा है इमोबल प्रॉपर्टी का, बराबर है। तो इमोबल प्रॉपर्टी का अगर रेंटिंग कर रहा है तो आपको पता है कमर्शियल अगर दुकान किराए पे दिया है तो वो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी रीइंबर्स कर सकता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस को रीइंबर्स कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, तो बताइएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर जीएसटी लगेगा क्या नहीं लगेगा? बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एग्जम्पशन है। तो अगर आपका टैक्स पेयर रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी के बिजनेस में है, लाख रुपए का रेंट है और हर महीना एक्चुअल बेसिस पे वो इलेक्ट्रिसिटी का रिइंबर्समेंट लेता है, 10,000 रुपए का रिइंबर्समेंट लेता है, तो बताइए रिइंबर्समेंट जो 10,000 का ले रहा है उसके ऊपर टैक्स पेएबल है क्या नहीं है? आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी करके एग्जम्पशन ले पाओगे क्या? रिइंबर्समेंट बोल के एग्जम्पशन ले पाओगे क्या? से यस और नो, सिंपल क्वेश्चन है। सुरेंद्र जी सिंह नो, दर्शन जी सिंह नो, सुवर्णा जी सिंह यस। तो टैक्सेबल है क्या नहीं है? मैं समझ में नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ, टैक्सेबल है क्या नहीं है? टैक्सेबल और नॉट? दर्शन जी सिंह टैक्सेबल, अदर्स? सुवर्णा जी सिंह नॉट टैक्सेबल। तो फ्रेंड्स यहां पर प्लीज नोट करिएगा, रिसेंटली एक हाईकोर्ट का जजमेंट आया है सृजन रियलिटी का। यहां पर हाईकोर्ट ने बोला है कि जब भी आप आपके टेनेंट को इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कर रहे हो तो आप थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, आपके पास थोड़ी कोई लाइसेंस है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर इलेक्ट्रिसिटी का लाइसेंस नहीं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कर रहे हो, आपका मेन एक्टिविटी है बेसिकली रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। एंड रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अगर आपका मेन सप्लाई है तो वहां आपको टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज आपका बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, आपका बिजनेस रेंटिंग का है। तो रेंटिंग अगर टैक्सेबल है तो जो इंसिडेंटल एक्टिविटी है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप सब लोग ये सृजन रियलिटी का जो जजमेंट है नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा, रिलेवेंट हो सकता है। काफी सारे टैक्स पेयर मैंने देखा है कि रीइंबर्समेंट बोल के इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स नहीं भरते, बट इन आवर व्यू ये रिस्की पोजीशन है। और ये सृजन रियलिटी के कलकत्ता हाईकोर्ट जजमेंट के बाद भी और रिस्की हो चुका है। तो अगर आपका क्लाइंट टैक्स नहीं भर रहा है तो इंश्योर करिएगा गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट दे पे टैक्स। चलो आगे बढ़े, अभी लगभग 10 मिनट्स बचे हैं। तो व्हाट आई विल डू, हम अभी Q&A के लिए अपना सेशन ओपन करते हैं। जितनी पॉसिबल की केस स्टडीज है वो लगभग सब हम कवर कर चुके हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि वैसे तो मैं 7:15 7:30 तक भी रुकता था, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे कभी सर्दी कमर थोड़ा बुखार है, तो मैं शार्पली 7 बजे सेशन को हम क्लोज कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिकली तो नाउ विल टेक अप द क्वेश्चन।
राहुल जी, इलेक्ट्रिसिटी के जो भी, अगर आप कमर्शियल आपका दुकान है, ₹1,00,000 आपका रेंट है, 8,000 आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिकवर कर रहे हो, तो हाईकोर्ट का बोलना है कि टोटल 1,08,000 आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। आप ₹8,000 का एग्जम्पशन नहीं ले सकते, बिकॉज यू आर नॉट सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। आपका मेन सप्लाई रेंटिंग का है, इलेक्ट्रिसिटी इंसिडेंटल सप्लाई है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है राहुल जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी सारे लोगों ने हैंड्स रेज किए हैं। आप चैट बॉक्स में अगर आप डाल सकते हो तो प्लीज चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा। आई होप सबको सेशन पसंद आया, जो की स्टडीज थी आप सबको रिलेवेंट लगी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके शायद हो सकता है कि प्रोडक्ट ये सेम ना रहे, बट थॉट प्रोसेस क्या था कि किस तरह से सिंपल डे टू डे जो प्रोडक्ट है, ब्रेड रहेगा, नट बोल्ट रहेगा, बराबर है, किस तरह से ये प्रोडक्ट का पूरा डिस्कशन करके आपको एक गाइडेंस दिया जाए, आइडिया दिया जाए कि हाउ टू टैकल बेसिकली क्लासिफिकेशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स, हाउ टू बेसिकली रीच टू राइट कंक्लूजन। तो ये थॉट प्रोसेस था। तो आई होप कि आप सबको ये थॉट प्रोसेस रिलेवेंट लगा एंड आपने ये सेशन को एंजॉय किया, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिला इस सेशन में। Pritam, it was really excellent and very exhaustive session. In just span of 2 hours, you have covered many case studies. थँक्यू धन्यवाद तुम्ही अपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल सर. Sir, thank you for your valuable time and giving insight to our members. थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स, धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू. ये प्रेजेंटेशन का कॉपी मैं आप सबसे शेयर करूंगा एंड एज आई मेंशन कि थोड़ा ठीक नहीं है, इसके लिए विल क्लोज एट 7. Pritam sir, we still have Yes. 5-6 minutes with us. बिल्कुल, तो मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ कोई रिलेवेंट है Yes. क्या. As always, you are wonderful, and your Thank you. delivery and style is also very beautiful. थैंक यू सर. To the point, very much to the point. ज्यादा फापट पसारा नहीं, एकदम सही पॉइंट पे आते हो और यू नो एज ऑलवेज excellent. Thanks ऋषिकेश जी for your kind words of appreciation. Thank you. मला वाटतं 1-2 जे क्वेश्चन आहेत, 1-2 क्वेश्चन इज बेसिकली वेदर पेनल्टी कैन बी लेविड. See, when you talk about penalty, we need to understand classification केस में आप ये पक्का आर्गुमेंट ले सकते हैं कि पेनल्टी इज नॉट अप्लीकेबल, बिकॉज डिस्प्यूट जो है ना, जैसे हमने कहा ब्रेड का एग्जांपल लिया, नट बोल्ट्स का लिया, इलेक्ट्रिसिटी का लिया, तो वहां पर ऑब्वियसली डिबेटेबल पॉइंट है. तो जहां पर भी डिबेट आता है तो आप बोल सकते हो कि कोई हमारा इंटेंशन नहीं था टू इवेट टैक्सेस, बट बिकॉज इट वाज अ डिस्प्यूट, इट्स ए इंटरप्रिटेशन इशू, पेनल्टी मे नॉट बी लेविएबल. तो ये आप आर्गुमेंट पक्का ले सकते हो. See, authorized dealer of motor vehicle collecting money as FASTag, RTO handling. रीता जी, आइडियली जब कार आप खरीदते हो ना, तो कार के लिए अगर कार का जो डीलर है वो अगर आपको बेसिकली ये सब सप्लाई कर रहा है, ऑल दिस थिंग्स टुगेदर नो, तो सेक्शन 15 के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से भी ऑल इंसिडेंटल सप्लाईज को आपको इंक्लूड करना पड़ता है. तो वहां पर जो भी कार का सेलिंग प्राइस है उस पर आपने कोई भी एक्सेसरीज दिया, उसको कोई भी चीज किया, स्टिकर लगा दिया, पेंटिंग लगा दिया, आजकल तो कितने सारी चीजें करते हैं, स्पीकर चेंज कर दिया, तो वहां पर अनलेस एंड अनटिल 2 सेपरेट डीलर से अलग अलग और अलग अलग बिलिंग होता है, अलग अलग लोग ये सब कर रहे हैं तो अलग बात है. लेकिन एक ही आपका कार का डीलर अगर आपको जो भी इंसिडेंटल सप्लाई कर रहा है, आइडियली फिर उस केस में टोटल वैल्यू पे जीएसटी लगेगा जो कार के रेट पे, यानी कि कार को जो एप्लीकेबल होता है इंक्लूडिंग सेस. तो वहां पर थोड़ा केयरफुल रहिएगा. अगर आपका कार डीलर अगर आपका कस्टमर है, आपका क्लाइंट है, तो आप पर ध्यान दीजिएगा कि अगर वही पर्सन सेम डीलर अगर सब इंसिडेंटल या एडिशनल चीजें भी सप्लाई कर रहा है तो टोटल वैल्यू पे एक ही साथ टैक्स लगा है.
बहुत बार कार डीलर के पास दो अलग अलग लोग रहते हैं, एक अलग ही सप्लायर रहता है जो उसके पास आके बैठता है और अलग सेपरेटली बिल रेज करता है, सेपरेट सप्लाई करता है, अलग कंपनी रहता है, अलग एंटिटी रहता है। तो वैसे केस में आप सेफली पोजीशन ले सकते हो, दो अलग अलग पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन अलग अलग है, सेपरेटली रजिस्टर्ड है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट सप्लाईज है, तो टैक्स रेट अकॉर्डिंग टू देयर सप्लाई लगेगा। सेम डीलर है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आइडियली टोटल वैल्यू ऑफ कार पे टैक्स लगेगा। सेक्शन 15(2) में स्पेसिफिकली लिखा है कि इंसिडेंटल चार्जेस को भी आपको इंक्लूड करना है। तो वहां पर हम क्लियरली कहेंगे कि ये सब सिचुएशन में लिटिगेशन इट इज नॉट वर्थ लिटिगेटिंग, बिकॉज आपके अगेंस्ट काफी सारे प्रोविजन है। कंपोजिट सप्लाई भी बोलता है कि प्रिंसिपल सप्लाई को देखो, तो मैंने अगर कार को स्टिकर भी लगा दिया 10,000 रुपए का, कार जब मैं बेच रहा हूँ, मेरा 15 लाख का कार है, 10,000 का मैंने स्टिकर लगा दिया, तो मेरा टोटल कार का प्राइस हो गया उसके केस में 15,10,000, तो टोटल प्राइस पे मुझे टैक्स लगाना चाहिए। तो जस्ट बी बिट केयरफुल रीता जी ऐसे सिचुएशन में, है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी क्लासिफाई एयरटेल मनी, वोडाफोन? नहीं, वो तो ट्रांजैक्शन इन मनी है ना, पेटीएम वगैरह तो ट्रांजैक्शन इन मनी है, तो उसको तो कोई क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांजैक्शन मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, so thank you all. Thanks for actively participating. I would also thank all the participants. बहुत ही actively participate किया right from the start. And thanks the team Pune ICI for this wonderful opportunity. बहुत ही interesting topic दिया था मुझे. So thank you all. Thanks. Thank you, sir, for accepting and helping us to structure this series. Your support is always there to do something new at our Pune branch. Friends, recently we have finalized one GST series, which is a sectoral series. Sector-wise, we are conducting one sessions like GST for automotive industry, GST for real estate, IT, ITES, tour operator. So I think you will really enjoy that also. And tomorrow or day after, we will announce that new series. Please join. If you are having any issue, please let me know. Thank you all participants, all faculty who have supported us for this series, technical staff from Pune branch, all MOCs, my managing committee members. Thank you all. I request Rishikesh to give formal vote of thanks. Thank you very much, Rajesh sir. Under your able guidance and chairmanship, we have started on a very good note. We have already announced 2 GST series. One we just recently, which is going on, and another which you have just now declared, the sectoral GST series. So that is a very good step, I feel. Once again, I thank CA Pritam Mahure sir for his excellent deliberation on classification issues. Thanks to all the participants who actively participated in the series. Once again, thank our technical staff of the Pune branch, and to all the participants, please also check the Pune ICI website regularly, because we are coming out with various programs on different issues like Companies Act. Also, we will be launching a refresher course soon. Various aspects of Companies Act, some of the unknown topics like special economic zones or CFO services, also some unknown topics will be launched soon. So I request all the participants to regularly check the website of Pune branch for updates. And once again, thank you. Let us conclude for today. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thanks. Thank you. Thanks Rishikesh ji. Thanks Rajesh ji. Chalo.